Morning. I'm just uploading. There was some delay. Good morning. 1 second only. Good morning, Sagarika. Good morning, Nishu. Good morning. Good morning, Ganyank, Ruchi, Nishu, Srilekha. Good morning. So, any questions you have on your mind, please ask the questions before we proceed. Any questions, please? Ethics is sometimes referred to as a secular morality. That's a very good question, Ravi, which was ethics is sometimes referred as a secular morality. What is meant by that? See, the concept of morality, as we are going to discuss today about the determinants of morality, the sources of morality come from different ways. So, one is the religious morality, because in the religion also, every religion has the do's and don'ts. So, it tells you what is to be done and what is not to be done. So, those type of morality, for example, the Ten Commandments, which are there in Islam, and then you have those in in Christianity, and then you also have that in in Judaism or Jews religion. So all that are basically tells you as to what is right and what is wrong. So those are also the standard of morality, but that comes from the religious sources. And philosophers are basically the people who are secular people, and therefore the one the ethics is basically a secular morality because it is not coming from any religious sources, and that is coming by logic and reasons. That is why it is called secular morality. Good morning, Anamika. Good morning. Any other questions, please ask. How can morality be universal as it depends upon person? नहीं देखिए morality morality is universal or not. You see, we are unique. I agree, but do you think that we are so unique that we have nothing in common with the rest of the world? See, you and me are having unique, but we have eyes, we have same thoughts, we have same body design. Okay, so we share a lot of things with the other people. In fact, if you find out the DNA is today considered to be the most authentic test to find out the uniqueness of the person. You may be aware of that DNA test. Huh? But the DNA also, you will find that more than 99% of the genes are common, and only 1% genes vary. And that itself is so much in numbers that you can differentiate one person with another person. So, what the common things which we share is much more than the differences we share, and that is why a lot of things of morality are common. For example, truthfulness. Now, truthfulness is a morality. I mean, we all expect people to speak truth to us. Who can make friendship with the people who is unfaithful or untruthful? Or suppose you want to be in any relationship, if you are married, for example, then you want your spouse to be faithful to you. Now, how can you maintain a relationship if they are unfaithful to each other or they're lying to each other? So these are the universal thing. It's not only in India. Go to any country, go to anywhere. Among the friendship, we expect honesty between us. If people are dishonest with each other, then naturally, the relationship cannot endure. And so these are some of the concepts which are universal. These don't vary. And this was there today. This was there thousands of years ago. Also. One second. Can ethics and morality be same? See, ethics and morality are same in more than 95, 99% of the cases. There is no difference between ethics and morality in most of the cases. Only in some cases there will be difference because ultimately the source of ethics is also similar, and morality also does not come from vacuum. You see, if you suppose you have been brought up in a village, in a jungle,
like Tarzan, for example, when you have not seen any civilized person and you have been brought up only in the, among the animal, let us imagine. In that situation, yes, I agree. But when you are brought up in a civilized society, you tend to gather the values only from the society, and therefore the morality and ethics will be 90% will be same, more than 90%. In fact, it will be more than 95% same. But there will be some differences between the two. Okay, let me take up the case of one second. Sir, it says normative ethics is based on action, but virtue ethics says it focuses on individual character rather than action, but it is form of the normative ethics. See, normative ethics basically is the method which is called prescriptive in nature. As to what does it mean is that what should be done in a particular situation. Now, what is appropriate or what is the ethical action in a particular situation, that has to be decided on case-to-case basis. Now, for example, virtue ethics. What is virtue ethics? Virtue ethics basically says that if the person is virtuous, because his actions are, he always work for the benefit of the society, benefit of other people. In that situation, whatever action he does is basically an ethical action. Like the example which I've given you, like Lord Krishna example, when he has asked Arjun to speak untruth, because his interest was not his selfish interest. He want the dharma to prevail. Okay. Or let us say we have typically given the examples of a movie where hero sometimes breaks the law, sometimes follow the law, sometimes commit violence, sometimes speak lies, but ultimately his interest is there. So this philosophy, which has been given by Aristotle and also many other philosophers, says that if the person is good, if he's good person, then whatever action he does is right. So in that is also applicable. I tell you that in the normal situation, also, for example, when you are in the government service, if you are a good officer and you have been doing all the things good, and you have not done any corruption, you have not done anything selfish, in that situation, if you commit a mistake, that will be treated in a very different manner. Normally the government will come to the rescue, your seniors will come to the rescue, because they will say, look, this guy is a good guy, this guy is an honest guy. If he has committed a mistake, it must be a bona fide mistake, or he must have thought of the interest of the organization, but actually it turned out to be wrong. But on the same, if suppose there is a person who is wrong, who is evil, who is doing wrong things, the same mistakes may put him into trouble. So that is how even in the practical life we follow both the principles. Okay. Now let me take up the next question. देखिए, ऐसा है कि यूपीएससी क्या चाहता है कि आपके अंदर मॉरलिटी नहीं हो, वो पढ़ के मॉरलिटी सीखे। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा उदय, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए क्या होता है कि जो ये एरिस्टोटल की प्रिंसिपल, और मेरी मेरी बहुत ही फेवरेट वो है एरिस्टोटल, उसके पहले सोक्रेटिस, सोक्रेटिस पर्टिकुलरली सोक्रेटिस और प्लेटो के ये थ्योरी है। उनका ये कहना है कि नॉलेज इज द एक्चुअलाइजर ऑफ एक्शन। नॉलेज जो है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉलेज इज एक्चुअलाइजर ऑफ एक्शन। ठीक है। नॉलेज इज एक्चुअलाइजर ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है? नॉलेज एक्चुअलाइजर ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ भी नॉलेज आपको एक्वायर होती है, सपोज करिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी भी आदमी के बारे में आप सोचते हैं ये बहुत ही ईमानदार आदमी, सपोज यू बिलीव दैट देयर इज समबडी एक्स पर्सन हु इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी गुड पर्सन। ठीक है। अभी आपने क्या हुआ कि आपके सामने एक नॉलेज आती है, चाहे आपके पास एक वीडियो क्लिप आ गई, या आपका एक क्लोज फ्रेंड है, या अपनी आंखों से आपने देखा कि वो आदमी कोई गलत काम कर रहा है, पैसे ले रहा है, करप्शन कर रहा है, या किसी अलग तरीके की इवेंट में वो इन्वॉल्व है। ठीक है। So the moment you gather that knowledge about that particular person, thereafter you cannot consider that person as good person. You understand my point? तो नॉलेज एक ऐसी चीज होती है कि वंस यू हैव द नॉलेज यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली। नॉलेज ऑलवेज एक्चुअलाइजेज योर एक्शन। तो अगर आपके पास में सही नॉलेज है तो आपके एक्शन सही होंगे, अगर आपके पास नॉलेज आपकी गलत है तो आपके एक्शन गलत होंगे। और इसीलिए ये जो सोक्रेटिस और प्लेटो और बहुत सारे थिंकर्स का ये मामला है, मानना है कि जो वर्चूज हैं या मॉरलिटी है, दैट कैन बी टॉट, दैट कैन बी टॉट। तो ये जो आपका पेपर एथिक्स का बेसिक पेपर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स
in the public services. Once you have this comprehensive knowledge, in that situation, you will not be guided by what the media says, what the people says, but you will be having a better preparedness for becoming a civil servant. ठीक है? तो ये इसलिए आपको तैयार करती है। अब ये बात सही है कि आपके पास में नॉलेज हो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है जब आप रियल लाइफ में जाएं तो आप गलत काम करें, तो दैट पॉसिबिलिटी इज देयर, बट दिस पॉसिबिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय टेस्टिंग योर नॉलेज। इसीलिए जब आपको साइंटिस्ट बनाना होता है तो आपकी साइंटिफिक नॉलेज का टेस्ट होता है, तो इंटीग्रिटी का टेस्ट होता है, क्योंकि जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे और खास तौर से आपके 125 मार्क्स के एसए का पेपर में आपको आंसर लिखना है और यहाँ पे आपको 250 मार्क्स का लिखना है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास में समय इतना कम है कि अनलेस यू हैव दोज इनहेरेंट क्वालिटीज इन यू, आप जब लिखेंगे तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड, और इस वजह से एग्जामिनर विल बी एबल टू जज यू टू अ रीजनेबल एक्सटेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज अ फुल प्रूफ टेस्ट, ही विल बी जज यू able to judge you in a reasonable extent as to what type of person you are, and to that extent he will be able to make a difference on that. तो ये इसका बेसिक पर्पस है। तो मैंने मेरे ख्याल से आंसर कर दिया। व्हाट डू यू थिंक क्रिटिसिज्म ऑफ वर्च्यू एथिक्स इज कीप चेंजिंग विद टाइम? इज देखिए क्रिटिसिज्म ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है शालीन, ये सारे आपका जो भी थ्योरीज हैं, ये हर थ्योरी का क्रिटिसिज्म है। आप वर्च्यू की बात करें या आप डेंटोलॉजी की बात करें या आप यूटिलिटेरियन की बात करें, आप रिलेशनशिप एथिक्स की बात करें, ऑल एथिक्स आर सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म बिकॉज यू कैन नॉट अप्लाई एनी एथिकल प्रिंसिपल इन ऑल द सिचुएशन। तो जैसे आज की तारीख में दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं बनी हुई है कि जिसको आप सारी बीमारी में खा, आपको फीवर हो तब भी खा लें, सर दर्द में खा लें, कैंसर में खा लें, लीवर के डिजीज में खा लें, ऐसी कोई मेडिसिन आज तक बनी है? कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इंडिविजुअल मेडिसिन जो होती है इंडिविजुअल केस में अफेक्ट करती है कि नहीं है? तो वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, सो यू शुड नो एज टू व्हाट मेडिसिन यू शुड टेक एट द राइट अप्रोप्रिएट टाइम। तो ये इसका पर्पज है, बट नो नो प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड इन ऑल द सिचुएशन, दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। अब ये सिचुएशन आपको खुद पता करनी पड़ेगी। अच्छा, एज वर्च्यू रिसेंबल्स ह्यूमन करेक्टर, ह्यूमन करेक्टर, अगर उसमें आप वर्चुअस एक्शन है देन योर करेक्टर इज गुड। अगर आपके वर्चुअस करेक्टर नहीं है और आपके वाइस है करेक्टर में, तो इट विल बी, यू विल बी कंसीडर्ड टू बी करेक्टर लेस। तो अगर वर्चूज हैं तो यू आर हैविंग अ करेक्टर, इफ वर्चूज नहीं है तो यू आर लैक ऑफ करेक्टर। देखिए श्रीलेखा, आपने क्वेश्चन किया कि डेंटोलॉजी में सिविल सर्वेंट शुड adhere to the duty, but always government cannot be right, and what should we do according to moral value or according to law? देखिए क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट होता है, ही इज अ व्हाट टू से, उसको क्या कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट, सर्वेंट कहते हैं ना, नौकर कहते हैं, सरकारी नौकर है। और जो नौकर होता है अगर उसका मालिक कहता है कि भाई आपको ये काम करना है, तो आप वो काम करोगे ना फिर। तो आप, यू कैन नॉट अप्लाई योर जजमेंट, दो आई विल नॉट डू इट बिकॉज आई डोंट कंसीडर इट टू बी अ राइट थिंग टू। So in the same way, you have to understand that when you are working in any organization, तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करना होता है, और जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको रूल्स को फॉलो करना होता है, लॉज को फॉलो करना होता है, और उससे बाहर जाकर के उनको परमिटेड नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ, लॉ को हम डिस्क्रिशन उसके अंदर जो होता है, उस डिस्क्रिशन के अंदर हम किसी का फायदा कर सकते हैं या अपनी मॉरलिटी को यूज कर सकते हैं, दैट यू कैन डू, बट बियॉन्ड द डिस्क्रिशनरी पावर यू कैन नॉट गो। Morality has basically, ethics is a very important component of morality, but morality और ethics में कई बारी थोड़ा थोड़ा difference होता है। As I told you that 90% of the time, you know, morality and ethics do not conflict with each other, even legality. जो आदमी law abiding citizen रहता है वो generally moral भी रहता है और ethical भी रहता है ना? तो law में, morality में और ethics में generally कोई conflict नहीं होती है, but there can be some situation जब conflict इसमें होती है। देखिए इंग्लिश मीडियम शालिनी में, इंग्लिश मीडियम के डेडिकेटेड हमारे सेशंस होते हैं। ये हिंदी मीडियम में हमने इसको कहा हुआ, इंग्लिश भी हम यूज करेंगे, बट आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश का हमारा डेडिकेटेड सेशन है। तो लास्ट 2 सेशन आई हैड इन एथिक्स इज डेडिकेटेड इंग्लिश मीडियम सेशन, तो आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। बट अदरवाइज क्या होता है कि हिंदी मीडियम में फिर अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हिंदी मीडियम को दिक्कत होगी, और इसीलिए इसमें हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक चीज समझ में नहीं आती, वी कैन सू, बट दिस इज बेसिकली हिंदी मीडियम सेशन। नो बाइलिंगुअल आई एम स्पीकिंग, बट बाइलिंगुअल में तो फिर दोनों चीजें आ जाती है ना। बाइलिंगुअल में इफ आई द हिंदी मीडियम पीपल विल हैव ट्रबल।
I'm trying to speak both the language. Okay. नॉर्मेटिव एथिक्स इज प्रेस्क्रिप्टिव। देखिए प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब सिर्फ ये होता है कि गिवन सिचुएशन में, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको कहता है भाई आपको ये बीमारी है, ये मेडिसिन ले लो, आप यही कहता है ना, या ये खाना खाओ, ये खाना नहीं खाओ, वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है। वो आपको मेडिसिन की जो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन है नहीं बताता, वो ये नहीं बताता है कि ये एनाल्जेसिक है, कि किस टाइप की मेडिसिन है, क्यों डिस्कवर हुई, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। वो सारी चीजें डॉक्टर खुद उसको स्टडी करता है, बट आपको ये कहता है भाई ये बीमारी है, ये मेडिसिन आप ले लो। तो वर्चू जो है वो आपकी जो वर्चू है बेसिकली, ये आपको वर्चू एथिक्स जो है वो नॉर्मेटिव एथिक्स के दायरे में आती है। वर्चूज तो आप कल्टीवेट करेंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर आप वर्चूज अपने अंदर कल्टीवेट करेंगे तो वो एक तरीके से जैसे आप क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं या आप हॉकी खेलने के लिए जाते हैं या आप मान लो स्पोर्ट्समैन है, उसके लिए कुछ चीजें कॉमन होती हैं। जैसे कि आप देखें फिजिकल फिटनेस सब में कॉमन है, तो चाहे क्रिकेटर हो चाहे वो हॉकी प्ले कर रहा हो, उसको आप देखेंगे कि वो सर्टेन एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारे लोगों को करनी। लेकिन उसके बाद में क्रिकेट के लिए एक अलग स्किल की जरूरत होती है, हॉकी के लिए अलग स्किल की जरूरत होती है, टेनिस के लिए अलग स्किल की जरूरत होती है। तो आप ये वर्चू को मान के चलिए कि वर्चूज जो है बेसिकली जो क्वालिटीज हैं वो सारे लोगों के लिए जरूरी हैं जो भी एथिकल बनना चाहते हैं। तो एक बार आपको वर्चुअस आपकी लाइफ होगी, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टू बी एथिकल। अगर आप वर्चुअस नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर आप केस टू केस बेसिस पे आप एथिक्स करने में आपको मुश्किल होगी। तो दैट इज हाउ दिस इज सेड, बिकॉज वर्च्यू एथिक्स जो है, तो वर्च्यू जो है सब्जेक्टिव नहीं, ये बिल्कुल आपने गलत कहा, आपने कहीं नहीं कहा कि वर्च्यू सब्जेक्टिव होती है, वर्च्यू नहीं, मॉरलिटी सब्जेक्टिव होती है। वर्च्यूज तो हमने कल आपको जो चार वर्च्यूज बताई वो तो यूनिवर्सल है, वो आपको बाइबल में भी मिलेंगी और प्लेटो भी वही कहेंगे, अरिस्टोटल भी वही कहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब ये है कि एथिक्स को एक्सप्लेन करना, कि जो मैंने आपको मेटा एथिक्स के बारे में बताया कि एथिक्स होता क्यों है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज इविल, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, तो ये चीज जो होती है उसको डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कहते हैं। और प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब ये होता है कि इस सिचुएशन में क्या एक्शन आपका प्रॉपर है, राइट है, वो प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स आता है। ठीक है। वेलकम अंश यादव, वेलकम वेलकम। So any other questions you have? I hope that you have been able to answer all the questions. If you have any other question, please tell me once. तो चलिए फिर हम आप आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको आगे भी मिलेंगे इन दिस टुडेज लेसन आल्सो, यू विल गेट सम आंसर्स एंड was just a minute. Just a minute. So I'm very happy that you are taking keen interest in the session and you are putting in your effort to learn it. Very good. I'm very happy about it. So today we are going to learn about determinants and consequences of ethics. Number one. Okay, okay, very good अंश। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो determinants of ethics का क्या मतलब होता है, determinant of ethics का क्या मतलब है? So first of all we will complete the yesterday session, then we'll go for today's session. So yesterday we were talking about, we were to start applied ethics. So we have learned about the meta ethics, we have learned about normative ethics, and now we'll take up applied ethics. अप्लाइड एथिक्स में आपने देखिए, जैसे लेटेस्ट आप एग्जांपल अगर अप्लाइड एथिक्स का अगर आप देखें, बिल्कुल हॉट एग्जांपल जो है, तो आपने देखा भी आरए में पेड़ कटने की बात हो रही है। आरए बॉम्बे में, यस्टरडे बॉम्बे हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट हैज गिवन द जजमेंट दैट द ट्रीज इन आरए area are basically not forest and therefore the government can cut those trees. और अभी उसके बाद में क्या, पूरी रात कल जो है वहां पे पूरी मेट्रो कार पार्किंग के लिए, और कल जो है पूरी रात वहां पे पेड़ की कटाई हुई है। अभी some estimates says कि hundreds of trees has been cut and there has been a long demonstration going on. If you switch on the TV you can know that.
नाउ दैट इज बेसिकली अ वेरी कंट्रोवर्शियल इशू कि अब ट्रीज को काटना चाहिए या नहीं काटना। Now, of course, some people say trees को नहीं काटना चाहिए, and there is a lot of people who are over there. But if you, you make metros, for example, if you make, then you have to cut some trees, तो कार पार्किंग के लिए आपको जगह चाहिए आपको। तो ना अभी जैसे मोदी जी ने जो है वो बुलेट ट्रेन के बारे में कहा कि अहमदाबाद टू मुंबई देयर विल बी अ बुलेट ट्रेन। Now there also, thousands of acres of land or lakhs of acres of land you have to acquire. Some trees will be cut. When you have, let us say, built Agra to Delhi expressway or, this way. So that again, it involves a lot of cutting of trees. So without cutting of trees, you cannot have any development. But at the same time, the question arises that whether we should compromise with the environment or we should allow that to carry on. So now this is something which is controversial. Some people say, look, development is more important. And some people say, no, environment is more important. Environment should not be sacrificed. And so that is basically a controversial issue. So what is applied ethics? How much we should do, how much we should go for development, how much we go for the environmental protection, all that basically falls in the domain of applied ethics. So applied ethics का मतलब क्या है? It involves examining the specific controversial issues such as abortion, infanticide, animal rights, environmental concern, homosexuality, capital punishment and nuclear war. अब ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं, देखिए ये आपके कंट्रोवर्शियल इशू, ठीक है, कि अब जैसे अबॉर्शन है, अबॉर्शन को अलाउ किया जाए कि ना किया जाए, किस सिचुएशन में किया जाए, एनिमल राइट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, डू वी हैव द राइट टू किल एनिमल्स और वी एनिमल्स आल्सो हैव द राइट टू सर्वाइव, इन्वायरमेंटल कंसर्न जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, homosexuality, people whether they have the choice, to have the sexual preferences or not, and then capital punishment, whether people should be given death sentence or not, or nuclear war. So all those things, are the issues which are falling in the domain of applied ethics, because these are the practical issues. Now, if you want to find out whether any issue is falling under the domain of applied ethics, we have to ask two questions. Question number one, there are two requirements. One is that is it controversial? The issue must be controversial because significant number of people are for and significant number of people are against the issue. अच्छा चलिए मैं आपसे एक सर्वे करके देखता हूँ आप लोग क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से ट्रीज को काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? अगर आपको लगता है ट्रीज को काटना चाहिए तो से यस, और ट्रीज को नहीं काटना चाहिए तो से नो। लेट मी जस्ट हैव योर। Those who think that tree should be cut, they should say yes. Those who think tree should not be cut, they should say no. Let me have your views. नहीं, मैं इसको मेट्रो रेल के बारे में बात करूं, जो मेट्रो रेल बन रही है, अगर आपको मेट्रो रेल के लिए पार्किंग बनानी है, मेट्रो रेल बनाना, उसके लिए ट्री को काटने की जरूरत है, तो डू यू थिंक ट्री शुड बी कट और नॉट? आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस मुंबई इंसिडेंट वेयर द ट्री हैज टू बी कट। ठीक है, जितना काटेंगे उतना लगाना चाहिए, ठीक है, दैट आई एग्री, बट पहली बात है कटना चाहिए कि नहीं करना? Now, 21% people say yes, and remaining people say no. So, a lot of people are, as we can see, that there are, pros and cons of that. Some people are favor, some people are against there. So, this is one issue which is falling under the domain of the applied ethics. डेवलपमेंट के लिए काटना पड़ेगा, वही बात है ना, डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप ट्री को काटते हैं तो ट्री को आप लगाइए भी। अल्टरनेटिव है कुछ, वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए क्षेमेंद्र जो है, ये जो आपका एंशियंट सिविलाइजेशन है, मैं आपको बताऊं जो वर्ल्ड में लास्ट से 200 इयर्स या मे बी इसे इवन 100 इयर्स, 100 इयर्स में वर्ल्ड में जितनी ग्रोथ हुई है, या 200 इयर्स मैक्सिमम, उतनी ग्रोथ जो है वो पिछले मिलियंस ऑफ इयर्स में नहीं हुई। अगर आप पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन ऑल्सो, द पॉपुलेशन इन द लास्ट 100 ईयर इटसेल्फ
must have multiplied by 6 to 7 times. जबकि उसके पहले जितनी पॉपुलेशन थी, आप सोचिए जितनी पॉपुलेशन थी उस अर्थ पे, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड टू लिव इन द अर्थ से by 1900, today we are having at least 7 to 8 times more number of people living here. It is growing tremendously. And naturally what has happened is that it has led to cutting of the trees. आप cities की बात करिए, आप roads की बात करिए. I mean, can you imagine that 150 years ago there was no electricity at all? आज आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे बिना तो रहने की सोच नहीं सकते हैं. 150 years के पहले कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था. The conditions of road, if you go back even 50 years, it was pathetic. So what we call development has come in recent years. You see the average lifespan of the people in the at the time of independence was hardly 30 years. इसका मतलब ये होता था कि आपके जो बच्चे पैदा होते थे, there will be at least 2/3 or 3/4 children who will die below the age of 20 years. That was the type of situation. Famines used to come and millions of people used to die. As compared to that, today the medication has improved and therefore people are living, and we are now 65 years of average age. Some countries like Japan have crossed 80 years as the average age. And so all that development which has taken place has taken a toll on environment. So this is something which we have to understand. Now we cannot forego the development. हाँ, ये आई एग्री विद दैट मृत्युंजय. बिल्कुल हमारे साथ साथ चलना पड़ेगा. दैट वी शुड हैव मोर प्लांटेशन, वी शुड ट्राई टू कंजर्व. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. यस. ट्रीज आर नीडेड देयर बट डेवलपमेंट इज आल्सो नीडेड. दोनों को बैलेंस करना ना, ये बात है. अंबिका, वही मैं कह रहा हूँ कि ट्री को काटना का भी पड़ेगा और ट्रीज को प्लांट भी करना पड़ेगा. both the things has to go together. I mean, when you are cutting trees on some place, you have to also plant the trees so that there is the overall green cover of our. And in fact, I was seeing some news a couple of days ago, and it says that the green cover on India and China has actually improved. If you look at the thing, I think last 10-20 years, the green cover on India and China has improved. तो ऐसा नहीं है, देखिए कि ग्रीनरी के लिए जो है वी आर नॉट कंसर्न, बट टू से दैट द ट्री शुड नॉट बी कट एट ऑल इज आल्सो नॉट राइट. बिकॉज डेवलपमेंट करना देखिए चाहिए होगा आपको, उसके अलावा कोई आपके पास में रास्ता नहीं है. अच्छा, कॉमन मॉरल इश्यूज लाइक थेफ्ट, मर्डर, रेप विच आर एडमिटेड बाय ऑलमोस्ट बाय एवरीवन एज इमोरल आर नॉट पार्ट ऑफ द अप्लाइड एथिक्स. सो इसका मतलब ये कि द इशू दैट विच आर accepted as everybody as immoral, those are not purview of the applied ethics, because there has to be some controversy. इसका मतलब some people should be, good number of people should be in favor of it and good number of people should be against it. Now murdering people using gun is not applied ethics, because that is wrong. If you are using gun to murder the people, it is wrong. Everybody will say it is wrong. It is not domain of applied ethics. However, gun control is applied ethics. But whether just like in America, anybody can go and buy, just like you buy a car or a television, or you can buy a gun over there. No license is required in America, or there should be licensing requirement like it is there in India, where getting a license of the gun is very, very difficult. So control of the gun is basically something which is ethical, which is applied ethics. But murdering is not. Murdering is beyond that, because it is anyway an unethical act. Second important thing we should understand, because there is a lot of confusion, so these 2 points we should understand. That is it a moral issue? Now, some issues like reservation, affirmative action, public versus private healthcare system, or energy conservation are controversial. They also have substantial impact on the society, and yet not having a moral dimension. So there are many issues, which are affecting, the society. For example, the caste-based reservation system or economic-based reservation system also. Affirmative action. Now, healthcare system, private versus public, or I must say even the education system, the private educational systems and the government educational system, whether they should exist. Now that these questions are, the questions which are basically controversial questions. These are controversial questions.
That is it fair that some people get a treatment in a five-star like hospitals, and some people don't get a treatment in the setup, or some people get education in the best of the best schools, and some people got have to be educated in the government schools where you don't have proper facilities also. So these questions are controversial, but these are not basically the moral issues, because these are also related to the resources. For example, now let us imagine that the government try to provide the private sector like education to all the people, or the treatment of the medical facilities to all the people in the country. Then you will find that the entire government of India revenue, if you multiply by 3 4 times, then also it will not be able to sustain. Now, sometimes people will compare that, in America it happens like that, in Britain it happens like that, in Switzerland it happens like that. Now, we don't understand that, that those countries have much better economy. If we have that level of economy, perhaps we can think about that. Okay, so that is, so these are also not the, applied ethics domain. These are the issue of the social policy, which may help to make a better society, like reservation, for example. The idea is that you should have a better society, and therefore you want to have inclusive development, and so you have brought that reservation policy. Private versus public healthcare system is based on the economic criteria. So these are basically the practical issues, and we so these are not the domain of the applied ethics. देखिए मॉरल डायमेंशन की जो बात होती है, मॉरल डायमेंशंस जो होती है, राइट एंड रॉन्ग जो होती है, वो हमेशा एक चीज आप ध्यान रखिए कि मॉरल डायमेंशंस जनरली एथिकल मॉरल डायमेंशंस या लीगल डायमेंशंस जनरली आर पर्टेनिंग टू इंडिविजुअल. जैसे मैंने आपको बताया कि फेथफुलनेस है, मान लिया कि शुड बी फेथफुल टू योर वाइफ और हस्बैंड और नॉट. नाउ दैट इज समथिंग विच इज एन मॉरल डायमेंशन. ठीक है, दैट इज अ मॉरल. शुड यू स्पीक ट्रूथ और नॉट, दैट इज अ मॉरल डायमेंशन. Should you, if suppose there has been a, somebody is being beaten on the road, then should you go and help that person? That is basically a moral dimension. So that is basically a moral dimension where there is a sense of right and wrong, and it is to be decided by the individual. That is moral dimension. But these are the issues which are in the national interest. It is in the national interest, and these are the policies, government policies. ऑल ओवर एक्सेप्टेड मीन्स ऑल ओवर एक्सेप्टेड का मतलब ये है कि देखिए जैसे मर्डर है, अब मर्डर के बारे में कोई भी नहीं कहेगा कि मर्डर जो है वो मॉरल है ना, या रेप मॉरल है. एवरीबडी सेज दैट इट इज एन इमोरल एक्ट. ओके, तो वो जो चीजें हैं जहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो वो चीजें जो है वो अप्लाइड एथिक्स के डोमेन में नहीं है. बट वेदर यू हैव टू कट द ट्रीज और नॉट, that is something which is because without cutting the trees you can't have development, and we want development. At the same time we also want to have environment, and therefore the people are divided. Some people prefer development, some people prefer environment. Okay, so that is why there is no universe, yeah, debate like situation. That is it. Now there are different branches of applied ethics. One is the medical ethics, business ethics, environmental ethics, sexual ethics, and human right ethics. Functionalists will say that even murders are नहीं नहीं, फंक्शनलिस्ट भी नहीं कहते हैं कि मर्डर, कोई भी नहीं कहता कि मर्डर अच्छी चीज है. वो दैट ऑफ कोर्स आर्मी वाला भी जाकर के एनिमी को मर्डर करेगा, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड टू बी गुड ना. अगर आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी का मर्डर करते हैं, किसी को मारते हैं, तो सेल्फ डिफेंस में जो किलिंग है, दैट इज परमिटेड इन एवरी लॉ. In the same way, if somebody is to be killed in the self-defense of the country, then also it is permitted. Okay, if the country is attacked, then they cannot say that I will not kill. And at the same time, if some killing is done for some people religion, for the religion, then that is justified for them, but not for everybody. Flat Earth Society, I don't know what you're talking about. Flat Earth Society क्या कहता है अभी? Now
when the issues are controversial in nature, like when the issue falls into the in the domain of the normative ethics, then what are the principles to be applied? Please understand that when we are talking about the normative ethics for the general ethical principles, in that situation, what happens that it is on the individual level, individual to individual level. Now this is about the state level, and so here the society is coming into picture, because these are the issues, as you must have seen that it is this is a common ethics decided on the basis of the society. So first of all, when what are the principles we have to apply to decide the applied ethics cases? First is the personal benefit. That means acknowledge to the extent to which an action produces benefit consequence for the individual in the question. Now, whenever you take any action, अब सपोज करिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ कि आप ये कह दीजिए कि भाई सिविल सर्विसेज में जो ऑफिसर्स होंगे, ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल बी गिवन सेम सैलरी, सेम वर्क, ठीक है, but their role will be different. So even if you are collector, or even if you are peon, let us say, you will get the same salary. Okay, you will get the same salary. Let us I say hypothetically. Or suppose you are you are an inventor, or you are a laborer, breaking stones. Everybody will get the same salary. Now, if that situation arises, in that situation, what will happen? That who will be motivated to work so hard? Who will be motivated to take risk in the life? So ultimately, whenever an action is done by anybody, he expects certain benefits to flow to him. When you are working hard, in that situation, you expect that you'll be getting more benefit. So whenever an action is done, then we have to see that the person who is contributing to the society, the person who, because of whose effort, the society is benefited, that person must get some person benefit. अब जैसे आप देखिए बिल गेट्स की बात करिए ना, बिल गेट्स मे बी अ वेरी रिच पर्सन, स्टीव जॉब्स मे बी अ रिच पर्सन, or Albert Einstein was very famous person and a very prosperous person in his time. Now the question is that the contribution which they have made to the society, the society has to give them certain benefits. So whenever a decision is taken, you have to see that the individual, what benefits are accruing to that individual. Some benefit has to go to the individual, unless that is there, people will not follow. तब तक लोग काम नहीं करेंगे. तो आपको ये देखना है कि भाई जो आप कोई भी काम करता है तो उसके पीछे उसको कुछ बेनिफिट चाहिए, और उसके बाद में सोशल बेनिफिट. एक्नॉलेज द एक्सटेंट टू विच एन एक्शन प्रोड्यूसेस बेनिफिट कॉन्सिक्वेंट टू द सोसाइटी. और उसी तरीके से जब आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि भाई इसमें सोसाइटी को क्या benefit. तो अगर आप कोई बिजनेस मान लिया कर रहे हैं, तो बिजनेस में एक इंडिविजुअल को कितना बेनिफिट हो रहा है और सोसाइटी को कितना बेनिफिट हो रहा है. अगर वो इंडिविजुअल को बेनिफिट हो रहा है, सोसाइटी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो गलत है. सोसाइटी को बेनिफिट आप करवा रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल का आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसको कोई बेनिफिट नहीं आ रहा, वो भी गलत है. तो ये दोनों फैक्टर आपको लेकर के चलने हैं. देन प्रिंसिपल ऑफ बेनिवलेंस, इसका मतलब ये है कि हेल्प द पीपल हु आर इन नीड. तो ये एक प्रिंसिपल ये है कि इट इज अवर ड्यूटी दैट इफ समबडी इज इन नीड, देन it is ethical that we try to help that person. So anybody who is in need, who cannot take care of himself, or who need our support. अब जैसे मान लो सपोज करो कि रोड एक्सीडेंट हो गया. अब रोड एक्सीडेंट में somebody is dying, or he is badly injured. Now it is our duty that we go and protect the life of that person, even if that person is a stranger. तो ये जो है ये आपको करना चाहिए. दिस इज व्हाट इज द राइट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मेटिव. देन प्रिंसिपल ऑफ पैटर्नलिज्म. पैटर्नलिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे फादर होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चा जब तक अपने पैर पे खड़ा नहीं होता है तब तक उसकी वो हेल्प करते हैं, और उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. दे जस्ट हेल्प देम सो दैट ही स्टैंड ऑन हिज ओन फीट. In the same way, there are many people in the society who cannot help themselves. So it is our duty to help them. That is the principle of paternalism. Assist others in pursuing their best interest when they cannot do it themselves. और अल्टीमेटली जब वो अपने दम पे खड़े हो जाएंगे तो हमें हेल्प करने का जरूरत नहीं है. बट अगर जब तक नहीं है वो अपने पैर पे खड़े हैं, तब तक उनकी हेल्प हमें करनी चाहिए. Principle of harm, that means we should not harm other people. That is what is ethical. Principle of honesty. नहीं, पैटर्निज्म देखिए, पैटर्निज्म का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बच्चा अभी जब नहीं खड़ा हो पा रहा, बट अगर वो एक बार अपने पैर पे खड़ा हो गया, अपने डिसीजन ले सकता है, देन यू शुड नॉट देन द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी विल कम. मैं अभी आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ.
Principle of honesty, that means we should not deceive others, we should be honest, we should be truthful. That is what we should do. Then principle of lawfulness. That means we should not violate the law, we should try to follow the law as best as we can. We should not break the law, we should not violate the law. Then comes the principle of autonomy. Autonomy का मतलब ये acknowledge that person's freedom over his or her action or physical body. इसका मतलब है कि कोई आदमी क्या करना चाहता है, क्या लाइफ में पाना चाहता है, उसके लिए उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए. So to answer your question, Akshay, that paternalism is good for long run. See, parents' role is very, very critical in, till such time you are not able to take your own decisions. But thereafter, once you are, mature enough in that situation, they should provide you the principle of autonomy so that you can lead your life in your own way. They should not interfere into your life for a long time. So paternalism also has a limitation. देखिए, harm ना करना, whether we should not do harm to people or animal. So the principle of not harming people is actually, as far as the harming the people is concerned, there is absolutely no doubt that you should not harm. As far as harming the animal is concerned, मैंने आपको बताया animal right जो issue है. That is again a controversial issue. Should we kill animals to eat, or should we, harm the animals? So that falls into the animal ethics. Okay, so that's a controversial issue. There are people who are in favor of that, but the idea is that we should not harm other creature. That is considered to be generally an ethical thing all over the world. But at least you should not harm the human beings, even if you harm them. एनिमल्स के लिए भी आप जबरदस्ती किसी को हार्म ना करें. अब जैसे आई रिमेम्बर अराउंड 2 years ago एक बंदे का वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा. उसने डॉग को जो है वो सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर की बालकनी से थ्रो कर दिया था नीचे. याद है आपको? उसका डॉग का जो है पैर टूट गया. यू मे रिमेम्बर इन तमिलनाडु दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड, सो आई रिमेम्बर वेरी वेल. So it was happened around 2-3 years. So just in the sake of fun, you have thrown that dog from the top floor, and now that type of action, cannot be considered to be an ethical action, just for the sake of fun. But of course, as far as I am concerned, I will perhaps feel that killing the animal for any purpose is wrong. But at least you should not harm the human beings. So that, of course, you should. Principle of justice. तो उसमें मैंने आपको बताया कि देखिए, जो जहां तक harming the animal is concerned, that is a controversial issue. Because in all over the world, more than 90% of the people eat meat. 90% of the people eat meat. Okay. Now, when 90% of the people eat meat all over the world, in that situation, naturally discussing that killing the animal is bad is something which is very difficult. तो जैसे डेमोक्रेसी होती है ना, डेमोक्रेसी के लिए कई बार हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी. ओके, डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी एक कहावत कहते हैं. डेमोक्रेसी इज द डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी. So when the 90% of the people in the world, drink, eat meat, in that situation, it is very difficult to convince the people that eating animal is bad. Okay. So I think generally people can't justify it, except giving the logic that it is the survival of the fittest, is how the nature is made. But at least as far as the human being is concerned, not harming human being is universally accepted ethics. Then principle of justice, that basically means that acknowledging a person's right to due process, fair compensation of the harm done, and fair distribution of the benefit. So this is also a very important thing, that principle of justice basically means that number one, that everybody should be given an opportunity to have the follow the due process. He has the he can go to the court, he can get the redressal over there, and if any harm has been done by anybody, whether by individual or by the government, it should be compensated, and there should be a fair distribution of the benefit. If there is benefit accruing in a organization or the society, that should be fairly distributed among all the members of the society. So that is basically the principle of justice. And the rights, acknowledge the person's right of life, information, privacy, free expression, and safety. That means people have the right to life, people have the right to information, people have the right to privacy, people have the right of free expression, freedom of expression, and people have the right of safety. So all these basically are the normative principles of the applied ethics. So when we are basically, solving these problems, we will be tomorrow, day after tomorrow, I will be taking some case studies in relating to applied ethics, when we are going to discuss about the doubt clearing session and that.
So then we will take up some actual case studies by which the concept of the applied ethics, how the applied ethics principle work, that will be clear. We shall also be taking about some case studies which will be explaining you the how to use the normative principles as we have learned in the normative ethics. Now, what are the different fields of applied ethics? First is the business ethics. Now, business ethics examine the ethical principles and moral or ethical problems that arises in business environment. Now, this applied ethics, friends, principle or the area is extremely important for ethics and integrity paper. I can tell you that almost every year you will find some question coming from this applied ethics area, because applied ethics area are generally on news. As we said that today when I open the television in the morning, almost the entire the all TV channels are showing that news. In the same way, you must have remembered that there was recently a fire in Brazil, and for a long time, there was a fire, and it has damaged the environment. So now you have to understand that whatever happens in your country, for example, 370, which you have done away with. Now that may affect India, but suppose there is a fire in India in a forest, and that start creating problem of pollution, that is going to affect the entire world. And so naturally the world is concerned. So environmental issue is something which goes beyond the geographical boundaries, and therefore it is concern of the entire world. Now, business ethics means ethical principles and morals or ethical problems that arise in business environment or business activities. Now, every management college, teach you full subject of business ethics. Any of you who have done MBA, they know that this is a compulsory. Okay. I'm going to take another class next month on GS paper 4 special class. I hope that you can learn over there, because I don't think there is any provision to provide you the link of the past cases. That I don't think is possible. At least I don't know about that. Okay. So, but I will take another special class on that. Don't worry, and then you can soon maybe I will inform you. Okay, I will inform you. So don't worry about that. I will take another class. So business ethics examine the ethical principles and moral or ethical problems. Okay. It discusses the ethical questions in marketing, accounting, labor laws, including child labor and abusive labor practices, human resource management, political contributions, business acquisitions such as hostile takeover production, use of toxic material, intellectual property, information management, including information leak and other points. Yeah, you can follow me, and then you'll be getting information about all the courses which I will be taking. I will be taking a course soon. Don't worry about that. Just keep following me. So business ethics is very important, because today you see what happened, that the businesses has gone into in India almost I think 90% or 95% of the production and services are there in the private business. Now, private businesses, they have to also follow ethics, because if they start failing, then what happens that the country's economy will collapse. As we are seeing that nowadays, a lot of builders, a lot of builders are failing. Now, when the builders, for example, fail, in that situation, you people don't invest in new projects, and that tremendously harm the development of the real estate sector. And real estate sector is a huge employer of the people. We have seen the downfall or the decline of the automobile sector, and so business ethics are required to be followed. And so business ethics is one domain of the applied ethics. And normally you will find some questions coming on the business ethics every year. Like you will find cases, for example, where there is a question that we have to get a government contract, and the government officer is demanding bribe, and so what do you do to get the contract? So similar type of questions: is it fair to give bribe and take the contract, or is it fair that you remove people
because there is a recession? Or is it fair that you instead of giving permanent employment to the people, you employ the people on the contractual basis on hire and fire policy? So many issues are there in the business ethics. देखिए बिजनेस शालीन नॉर्मली क्या होता है कि whenever somebody has done, if I remember it correctly, this Maradhu flats violated the law itself. So if you have constructed the flats, violating the law itself, then it will not be beyond the because that is not a controversial issue because everybody will say it has to be demolished. Only thing is that if the things has been done according to the law, that will basically fall under the business ethics. That you have promised that you are going to deliver a wonderful flat, you have taken the possession, ultimately the company got bankrupt. So you got money and ultimately people got nothing. So those type of issues will come over there. It will come under CSR. CSR will be better thing to say. CSR. But CSR is also related, is a different issue. It doesn't build against the law actually. So I'm not very much familiar with this Maradhu flat demolition. What was basically? Yeah, TV advertisement for misleading, people. That of course will fall under the business ethics. Yes. The second is, falling under the legal ethics. Legal ethics basically means it refers to the ethical code governing the conduct of people engaged in the practice of law. So in the law, what are the principles you have to follow? Now, for example, suppose I know that somebody is a noted criminal. He has committed rape or murder or very serious type of offense or a terrorist. Should I go and protect that guy using my intelligence? Should I, attend to his case? So there is a lot of issues which are there part of the legal ethics. The client-lawyer relationship, whatever is discussed among the client and अच्छा तो क्लाइंट और लायर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जैसे कि मान लिया जो लीगल एथिक्स में क्या होता है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको क्या एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। देखिए लीगल एथिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे जो एडवोकेट होते हैं, अब एडवोकेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है सबसे अमीर आदमी को जा करके अगर वो 50 क्राइम करता है तो उसको आप बचाएंगे। तो एडवो उसको भी कुछ एथिकल कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो एक तो क्लाइंट लॉयर रिलेशनशिप के बारे में एथिक्स रहता है कि जैसे अगर कोई भी चीज कॉन्फिडेंस में बताई गई है क्लाइंट के द्वारा लॉयर को, तो उसको हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ड्यूटीज ऑफ अ लॉयर एज एडवोकेट इन एडवर्सली प्रोसीडिंग्स, कि जब इस तरीके की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें कि मान लिया आपका दूसरे पार्टी के लॉयर से क्या आप मिल सकते हैं या दूसरी पार्टी से मिल सकते हैं, तो ये चीज होती है। जैसे गवर्नमेंट का जो लॉयर होता है, अगर मान लिया आप गवर्नमेंट के लॉयर है तो आप सपोज करिए कि जो दूसरी पार्टी है उससे आप मिल सकते हैं क्या, ये एक इशू है। उसके बाद में डीलिंग विद द पर्संस अदर देन द क्लाइंट्स। और अब जैसे आप गवर्नमेंट के एडवोकेट है लेकिन आप प्राइवेट पार्टी का भी केस लड़ रहे हैं, पब्लिक सर्विस। अब जो आप एज एन एडवोकेट क्या आप कर रहे हैं, आप पब्लिक सर्विस कर रहे हैं कि लोगों को जस्टिस मिले, या आप अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्राइवेट सर्विस के लिए। तो ये भी एक चीज, जैसे जो एडवोकेट होता है जैसे राम जेठमलानी टाइप के जो एडवोकेट थे, वो तो टेररिस्ट का भी केस लड़ते थे। तो बेसिकली क्या है कि क्या आपको टेररिस्ट का केस लड़ना चाहिए, क्या आपको कोई चीज देश के खिलाफ है मान लो, तो उसके लिए आपको जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट इशू, इसीलिए मैंने कहा ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू। आपको मालूम है कि आप मान लिया सपोज करिए बहुत ही रेपुटेड एडवोकेट है और आपके पास एक आदमी आता है, कहता है वो बंदा जो है उसने एक किसी इनोसेंट लड़की का रेप किया है या किसी का मर्डर किया हुआ है, वो आपके पास आता है, कहता है मुझे बचा लो, ठीक है, आपको जो भी फीस होगी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, वॉट एवर इज योर डिमांड। अब ऐसे सिचुएशन में इज इट राइट फॉर यू टू एक्सेप्ट दैट केस और कोर्ट में उसको बेगुनाह प्रूफ करना, क्योंकि कोर्ट में बेगुनाह प्रूफ करना कितना बड़ा इनजस्टिस होगा। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच फॉल्स अंडर द लीगल एथिक्स। देखो गाना एक ऐसा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो कोर्ट है, ठीक है, और जो जनता है, उसको तो देखो पता नहीं है कि वाकई में वो गुनाहगार है कि नहीं है। प्रूवन गिल्टी का मतलब क्या है? अगर सपोज करो अपनी आंखों के सामने कोई मर्डर होते हुए देखा, अपने आपके आंखों के सामने कोई मर्डर हो रहा है सपोज करो,
तो क्या फिर आप इस बात पे उसको इनोसेंट डिक्लेयर कर दोगे कि कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया? आप मुझे बताइए, बिफोर योर ओन आईज इफ यू हैव सीन एनी मर्डर टेकिंग प्लेस, and let us say that the court has not found that person guilty, maybe the world will believe because the world has not seen the person committing the murder, but you will not, you will not consider that guy an innocent guy, right? In the same way, if you are an advocate and the person has told you that yes, he has committed the rape and he has committed the murder, in that situation, if you are asking him to fabricate the documents, if you are asking him to buy the witness, if you are asking him to tell many lies so that you can win the cases, then can you say that you are innocent? है ना? तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप देखो, एडवोकेट को तो सब पता है ना, एडवोकेट को धोखा देके अगर कर रहा है तो अलग बात हो गया, बट एडवोकेट को सब बता दिया उसने कि देखो मैं गया था इतने बजे गया, मैंने उसको मर्डर किया, ये वेपन से मर्डर किया, ये वेपन मैंने यहाँ छुपा दिया, ये विटनेस थे। अब वो एडवोकेट आपको कहता है भाई इसको ऐसे बचना है, तुमको यहाँ पे ये झूठ बोलना है, यहाँ पे ये करना है, उस दिन दिखा दो कि तुम तो होटल में ही नहीं थे, तो एक दूसरे जगह पे रुके हुए थे। देखो गानायक जो है, ये कानून अंधा नहीं होता। देखिए आप इसको समझने की कोशिश करिए, आप झा साहब इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि कोई भी जो क्राइम किया जाता है, वो जो क्राइम होता है वो सीक्रेट में क्राइम किया जाता है ना? अब सीक्रेट में जब कोई क्राइम या कोई मर्डर कर रहा है तो वहां सीसीटीवी लगा करके तो उसकी फुटेज नहीं ले रहा है ना। वो तो अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करता है कि मर्डर हो, उसको वो बच जाए, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब आपका कोर्ट में मुकदमा आता है, तो कोर्ट में जब मुकदमा आता है तो वो तो उसको तो पता नहीं है कि कहाँ पे मर्डर हुआ, वो तो जज तो प्रेजेंट नहीं था वहां के मर्डर के साइड पे। तो वो तो उसी बेसिस पे डिसाइड करेगा ना जो उसके सामने एविडेंस आए हुए हैं। अगर वो खुद प्रेजेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, तो वो कैसे किसी को गिल्टी प्रोनाउंस करेगा? आप बताइए, आप अपने को उस जगह पे रख करके सोचिए। अब बाकी लोगों के साथ क्या होता है कि जिन्होंने मान लो अपनी आंखों से मर्डर होते हुए देखा है, वो तो कहेंगे कानून अंधा है, बट वो खुद जाकर के विटनेस नहीं बनते हैं। प्रॉब्लम ये होती है ना, आप दूसरे को तो ब्लेम करते हैं, भाई आपने अपनी आंखों से मर्डर हुए होते देखा है, या आपको मालूम है कि इस बंदे ने मर्डर किया, आप जाइए कोर्ट के सामने खड़े होइए जाकर। अब पहलू खान के केस तो अभी इट इज आई थिंक इट इज बीइंग री इन्वेस्टिगेटेड बाय एसआईटी आई बिलीव। वही उदय मैं आपको कह रहा हूँ कि चूंकि आपको देखिए, जो एडवोकेट टिपिकल जो एडवोकेट होते हैं, वो क्या होते हैं कि क्लाइंट को जानबूझ के वो कहते हैं भाई तुमने कर लिया, अब तुमको मैं बचाऊंगा, जितना बड़ा क्राइम उतना ज्यादा पैसा लेते हैं। और फिर वो आपने वो देखी जॉली एलएलबी, देखी है किसी ने जॉली एलएलबी? जॉली एलएलबी देखी है? पार्ट टू नहीं, पार्ट वन जो है जॉली एलएलबी देखी हुई है? तो उसके अंदर आप देखिए जो उसका बोमबल ईरानी का जो रोल था, बोमबल ईरानी का जो रोल था, वो क्या करता था? इतना बड़ा एडवोकेट था वो, तो सारे डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट करवाता है ना वो। तो वो उसको आप कैसे इनोसेंट कह सकते हैं? वो पैसा ले रहा है, उसको पता है इसने मर्डर किया है, इसने पता पता है इसने जो है क्राइम किया हुआ है, और उसके बाद में भी उसको वो बचा रहा है, तो ही इज नॉट इनोसेंट। पब्लिक तो कोर्ट को फॉलो करेगी, पब्लिक को तो पता नहीं ना, बिकॉज यू हैव नॉट सीन द इशू। अच्छा महेंद्र, देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में अभी आप लाइफ में आएंगे तो आप पाएंगे कि जो लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं, जो लोग बहुत अमीर होते हैं, उसमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेरिट से अमीर बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरिट से नहीं बनते हैं। आप देखिए, बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, हमारे यहाँ नारायण मूर्ति हैं, शायद रतन टाटा होंगे, बहुत सारे लोग हैं। बट 90% हमारे देश में जो लोग बहुत अमीर बनते हैं वो कोई ना कोई गलत काम करके बनते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आपके बिजनेसमैन हो। दिस इज माई एक्सपीरियंस, 90% ऑफ द पीपल हु मेक मनी, ह्यूज मनी, मेक मनी थ्रू इलीगल मीन्स। करप्शन हो सकता है, क्राइम हो सकता है, टैक्स इविजन हो सकता है, ब्राइबरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादा पैसे आते हैं ना, तो ये बहुत ही इसका रहीम दास का एक बहुत ही अच्छा एक बहुत लाइन है जो कि जावेद अख्तर साहब भी बहुत सुनाते हैं कि रहमन विपदा आ पड़ी, नहीं, रहमन विपदा आ पड़ी टेढ़ो दोनों काम, रहमन विपदा आ पड़ी टेढ़ो दोनों काम, सीधे से हरि ना मिले, उल्टे मिले न राम। तो रहमन
मतलब कि रहीम दास का ये दुआ है कि मैं बहुत ही मुश्किल में फंस गया हूँ भगवान। क्या मुश्किल है कि सीधा अगर काम करता हूँ, सीधे से जग ना मिले। अगर सीधा काम करता हूँ तो दुनिया में सफलता नहीं मिलती, एंड उल्टे मिले ना राम, और गलत काम करता हूँ तो भगवान जो है आप नहीं मिलते। तो मैं बड़ी मुश्किल में हूँ कि किधर जाऊं, इधर जाऊं, सीधे रास्ते पे चलूं या गलत रास्ते पे चलूं। तो ये जो है ये एक डायलेमा होता है लाइफ में, और इसको कैसे साक्षी, मिडिल पाथ बड़ा मुश्किल होता है, मिडिल पाथ बड़ा डेंजरस भी होता है। देखो मिडिल पाथ में क्या होता है कि अब करप्शन में क्या मिडिल पाथ है, आप बताओ। करप्शन में या तो आप पैसे ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, करप्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब आपने 1 करोड़ का करप्शन किया या 1 लाख का करप्शन किया, उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, उसमें क्या मिडिल पाथ होगा आपका। 1 रुपए करप्शन किया, ठीक है, तो दोनों तरीके से आप जाओगे उधर। तो इसीलिए कहते हैं ना कि माया मिली न राम, एक दूसरा भी बड़ा इससे मिलता हुआ है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ये भी शायद आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है, लोग मिडिल पाथ जब फॉलो करते हैं तो माया भी चली जाती है हाथ से और राम भी चले जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये मत सोचिए कि मिडिल पाथ जो होता है हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये तो है ही है रविंद्र जी, ये सब तो चलता है ये लाइफ में। और अमित शाह साहब भी जेल गए थे, आज वो होम मिनिस्टर हैं। चिदम्बरम साहब ने उनको जेल भेजा था, आज वो जेल में हैं। ये तो समय का चक्र है, चलता रहता है। साक्षी, करप्शन का पैसा लेके गरीबों में बांटना पिक्चरों में अच्छा लगता है, कभी मत करिएगा। आप लोग सिविल सर्वेंट बनने की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा आप वाल्मीकि की स्टोरी याद रखिएगा कि कोई भी आदमी जो है पैसा बांटने के लिए हमेशा तैयार रहता है, पाप बांटने के लिए तैयार नहीं। तो अगर आपने करप्शन से पैसा, किसी ने भी करप्शन से पैसा लेकर के अगर उसने जनता में बांट करके सोचा, तो करप्शन तो करेगा ही करेगा, करप्शन का दाग उससे कम नहीं होगा। लोग पैसा बांट ले लेंगे, ताली बजा देंगे, उसके बाद में अल्टीमेटली जब वो जेल जाएगा तो कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत करप्ट आदमी था, इसने मुझको भी पैसा दिया था। तो कहेंगे इसने मुझे ही पैसा दिया था, आई एम श्योर कि बंदा बहुत करप्ट है। ठीक है। देखिए, तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि ये चीजें लीगल एथिक्स की, अगर आपका दिमाग है, आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, तो क्या आपको क्रिमिनल्स को बचाना चाहिए। ये एक बड़ा एडवर्टाइजिंग, आप एडवर्टाइजिंग करना, आपको मालूम है कि लीगल में परमिटेड नहीं है। कोई भी एडवोकेट एडवर्टाइज नहीं कर सकता है। रिस्पेक्ट फॉर क्लाइंट, कॉन्फिडेंस, क्लाइंट अगर कोई कॉन्फिडेंस में कोई चीज बताता है तो उसको आपको रिवील नहीं करना है। और प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस की, जब आप डिसीजन लें, आप आर्ग्यू करें, तो आप इंडिपेंडेंट करें। आप जो क्लाइंट है उसका सर्वेंट की तरह यूज अपने को ना बिहेव करें, बल्कि इंडिपेंडेंट तरीके से आप जस्टिस को डिलीवर करवाएं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता मृत्युंजय, क्योंकि क्या होता है कि आपने सुना होगा, बहुत ही पुरानी बहुत अच्छी कहावत है कि बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। सुना है आपने, किसी ने सुना है, नहीं सुना है? हम्म? कि ये बर्बादे गुलिस्तां, गुलिस्तां का मतलब होता है गार्डन, गार्डन को बर्बाद करने के लिए एक उल्लू, मतलब कि एक जो आउल था वो काफी है। और हालत यह है कि जो जो आपका जो गार्डन है उसके हर शाख पे, मतलब एवरी ब्रांच पे एक आपका उल्लू बैठा हुआ है, तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो जो आपका जो गार्डन है उसका क्या फेट है। तो ऐसा है, किसी एक ऑफिसर को क्या हम, किसी एक ऑफिसर की बात ना करें। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि भाई हम अपने को बचा लें, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरे के चक्कर में मत पड़ेंगे, दूसरे को देख करके, ठीक है। देखिए, ऐसी लाइनें ना लिखें तो अच्छा है। ऐसी लाइनें एथिक्स के पेपर में अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि क्या होता है कि ये थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं ना, ये हकीकत को, देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत, चलिए मैं, ये तो लेसन चलता रहता है लाइफ में, आपको कुछ और लाइफ के लेसन भी मैं आपको बताता रहता हूँ जो आपको समझने चाहिए। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने का, है ना। फिल्म हो जाएंगे सर एग्जाम में, ऐसा ऐसा मत लिखना, फिल्मी फिल्मी चीजें मत लिखना।
मैं आपको देखिए एक बात बताता हूँ, इस स्टोरी को आप ध्यान रखिएगा। एक बार क्या हुआ कि दो फ्रेंड्स जो हैं वो एक जंगल में जा रहे थे। तो पीछे से एक टाइगर तेजी से चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। ठीक है। तो एक फ्रेंड जो है वो फटाफट जूते पहनने लगा, बहुत तेजी से जूते पहनने लगा। तो जब वो जूते पहनने लगा तो दूसरा फ्रेंड उससे बोला कि तुम्हें कैसे क्या लगता है कि जूते पहन के तुम वो टाइगर से ज्यादा तेजी से भाग लोगे? तो उसने कहा कि मुझे टाइगर से ज्यादा तेज नहीं भागना, मुझे सिर्फ तुमसे ज्यादा तेज भागना है। आया समझ में? उसने कहा आई डोंट हैव टू रन फास्टर देन द टाइगर, आई हैव टू रन ओनली फास्टर देन यू। समझ में आ गया? कहने का मतलब मैं भाग जाऊंगा, तुम तो मर ही जाओगे। ठीक है। तो ये जो है देखो, ये एक हकीकत की दुनिया में होता है कि आपको यू डोंट हैव टू डू द एब्सोल्यूट बेस्ट। ठीक है। लेकिन इस तरीके की स्टोरी कभी भी आपको लाइफ में कोट नहीं करनी चाहिए। कोट दूसरे तरीके की स्टोरी की आती है, जैसे कि एक दूसरी स्टोरी होती है जो भी शायद आपने सुनी होगी कि लाइफ में वो दो फ्रेंड्स चले जा रहे थे एक जंगल से। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि एक भालू आ रहा था पीछे से। बियर 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 वॉज फॉलोइंग। ये बड़ी फेमस स्टोरी है, वर्ल्ड फेमस स्टोरी है। तो एक फ्रेंड जो है वो बहुत दुबला पतला था, एक फ्रेंड बहुत मोटा था। तो जो दुबला पतला फ्रेंड था वो पेड़ पे चढ़ गया, और जो दुबला जो पतला मोटा आदमी था वो पेड़ पे जमीन पे लेट गया। तो भालू आया, और भालू के बारे में ये कहते हैं कि वो डेड पर्सन्स को नहीं खाता है, डेड डजंट ईट डेड डेड। तो उसको उसने सूंघा होगा, सूंघ करके उसको लगा कि डेड है, इसने सांस वांस रोक लिया था, वो चला गया अपना। तो जो ऊपर वाला फ्रेंड था उसको लगा कि भालू उसके कान में कुछ कुछ बोल रहा है। तो जब वो बाद में दोनों साथ साथ चलने लगे तो उसने भालू से उससे पूछा फ्रेंड से कि भाई भालू ने तुमसे क्या कहा? तो उसने कहा कि ऐसे फ्रेंड को ट्रस्ट नहीं करो जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ छोड़ दे। है ना, मुसीबत में अगर तुमको कोई फ्रेंड छोड़ दे तो ऐसे लोगों को साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, इस तरीके की। अब ये देखिए मॉरल स्टोरी है। तो मॉरल स्टोरीज होती हैं वो स्टोरीज होती हैं जो कि आपको मॉरलिटी सिखाती हैं। और ये स्टोरीज हमेशा हमें यूज करनी चाहिए जब हम खासतौर से एथिक्स मॉरलिटी के पेपर्स दे रहे होते हैं। तो वी शुड ऑलवेज यूज द मॉरल स्टोरीज, मॉरल कोटेशंस। है ना? अब ये बर्बादे गुलिस्तां वाला जो स्टोरी है, या जो मैंने आपको वो शूज वाली स्टोरी बताई, ये इमोरल स्टोरीज हैं, बट दीज आर द रियल लाइफ स्टोरीज। कि रियल लाइफ में कई बार ज्यादातर ये होता है, बट इट हैज नो मॉरल इन इट। सो आई विल एडवाइज यू नॉट टू यूज इमोरल स्टोरीज इन दी in your essay or in your in your ethics paper। ठीक है, यूज ओनली द मॉरल स्टोरीज प्लीज। आपको देखिए एक चीज नहीं भूलना चाहिए कभी भी कि ऐसे या एथिक्स का जो पेपर है उसके पीछे आपका एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है टू स्कोर बेस्ट मार्क्स। नाउ एथिक्स के पेपर में अगर आप अनएथिकल चीजें लिखोगे तो अच्छा ना मार्क्स कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं? तो लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। हाँ, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। एग्जामिनर जो जो जिस चीज का पेपर है, जो एप्टीट्यूड आपसे टेस्ट करने को कहा जा रहा है वो आपको बोलना है ना। Now, environmental ethics is the next branch of ethics, and this is the most important as far as applied ethics is concerned. I have seen virtually last 7 years में कम से कम 4-5 questions environmental ethics में है। So this is a very very important, a very hot and important topic for all of us. So environmental ethics is the discipline of philosophy that studies the moral relationship between human beings and also the values and moral status of the environment and the non-human content. So, what is the relationship? What should be the relationship between human beings and non-human beings and the environment? It rests on the principle that human beings are part of the environment and so are the other living beings, including plants and animals. They cannot be denied their right to live. They need to be considered as entities with the right to coexist with human beings. तो ये कहना देखिए सही नहीं है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पूरी दुनिया के राजा हैं और वो अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को बढ़ाएंगे, और बाकी जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके बारे में कुछ चिंता नहीं करेंगे। वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबडी हैज अ राइट टू लिव इन दिस अर्थ। The main topic included in the environmental ethics are global warming, then pollution, issues that are closely tied to poverty, sustainability, then economic and social justice. So all these issues are basically connected with the environmental ethics। तो हमें पेड़ भी काटने हैं, क्योंकि अगर हम जंगल नहीं काटेंगे तो वहां पे हमारा कैसे हम घर बनाएंगे, और हाउ वी आर गोइंग टू कल्टीवेट मोर क्रॉप्स, क्योंकि जब तक क्रॉप्स नहीं होंगी तब तक हम कैसे जो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड। सो लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर
which are related to poverty. Poverty is also one of the very important issue कि जिसकी वजह से हमें डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इट इज द पुअर पीपल हु आर बेनिफिटेड. इन्वायरमेंटलिज्म, यस, इन्वायरमेंटल एथिक्स में हम इसको यूज करना ही करना है, इन्वायरमेंटलिज्म. Since environmental problems often affect beyond the boundaries of the nation states, this issue is tied to the field of international relations and global governance. तो ये ग्लोबल इशू है, जैसा मैंने आपको बताया, बाकी इशू लोकल है, बट दिस इज अ ग्लोबल इशू. देखो उदय क्या है, मैं आपको बताता हूँ. ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है. आप देखिए जैसे कि गंगा है, उसको क्लीन करने का इतना ज्यादा हमारे देश में कोशिश किया, हजारों करोड़ रुपए हमने खर्चा किया, क्यों क्लीन नहीं? अब लोग डेड बॉडीज जाकर के वहां पे डाल देते हैं, डेड बॉडीज डालते हैं, और लोग सुनते नहीं है. लोगों के इस तरीके के फीलिंग्स हैं कि भाई वहां पे जा करके डेड बॉडीज जाएंगी तो अब इसका देखिए क्या है कि देयर हैज टू बी नंबर वन कि हमें स्पेंड करना पड़ेगा ऑन यू नो क्लीनिंग द, वी हैव डिस्टिलेशन प्लांट्स एंड वी हैव टू क्लीन द वाटर. उसमें स्पेंडिंग की जरूरत है. जैसे जो गार्बेज इकट्ठा होता है, जो जो पोल्यूशन है, उसको हाउ टू use that, because that thing we cannot industrial waste है. So all that thing we have to do. तो इसमें भी हमें छठ पूजा है, the things has to come from both the sides. The people have to be aware कि वो गणेश चतुर्थी हो गया, छठ पूजा हो गया, उसमें पोल्यूशन ना करें, दिवाली में ना करें या कम करें. और वहीं पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे हम पोल्यूशन को कम करें, जो चीज आने वाले है. पीपल एक्चुअली देखिए साक्षी क्या है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस जो है वो धीरे धीरे आ रहा है. अभी आप देखो लास्ट ईयर दिल्ली में इतना ज्यादा, अगर आप दिल्ली में कोई भी रहता है तो आपको पता होगा कि दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन था, और लास्ट 2-3 साल से दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू इवन ब्रीथ, है ना. बट अभी आज इस साल आप देखो, 9 अक्टूबर हैज स्टार्टेड एंड टुडे द वेदर इज मच मच बेटर. तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है कि अगर लोग इतने बेवकूफ नहीं होते, पीपल रियलाइज कि हाँ भाई एनवायरमेंट, बिकॉज दे कैन सी द डैमेज हियर. एंड अब देखिए तो देन पीपल फॉलो, बट द थिंग इज दैट पीपल हैव टू बी मेड अवेयर ऑफ दैट, पीपल मस्ट अंडरस्टैंड दैट. आप देखिए कि यू आर राइट, बट हाँ, सारे नदियों को क्लीन करने की जरूरत है, आई एग्री विद दैट, सारे नदियों को. बट देखो एक चीज आप लोगों को फ्रेंड समझना पड़ेगा. ये चीज देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आशीष और बाकी आप लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं, कि आपको, हाँ ये बारिश भी एक कारण है, बट जनरली काफी स्टेप्स किए हैं गवर्नमेंट ने भी, जो जिससे पोल्यूशन पे फर्क पड़ा है. हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्लीन इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट विथ नो इन्वायरमेंटल डैमेज इज एक्सपेंसिव थिंग. इट कॉस्ट मनी. जैसे हमने क्लीन इंडिया मिशन कर दिया, बहुत अच्छी बात है, क्लीन इंडिया मिशन होना चाहिए, बट क्लीन इंडिया मिशन अगर वाकई में हम वेस्टर्न कंट्रीज जैसा क्लीनलीनेस चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज की तरह, हमारे पास गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. तो धीरे धीरे करके जब इकोनॉमीज ग्रो करती हैं, अभी आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,000 की है सिर्फ, जबकि अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $50,000 से ऊपर है. और जो वर्ल्ड में मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे जर्मनी हो, जापान हो, ये सब 60, 70, 80,000 डॉलर्स की है. तो आप सोचिए कि अगर कोई आदमी जो है, अगर हमारे कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है जब तक इंप्रूव नहीं करेगी, इवन दो वी मे बी सेइंग वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट, सिक्स लार्जेस्ट, सेवेंथ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट इट इज बिकॉज वी आर 130 करोड़ पीपल. एज फार एज द इंडिविजुअल income is concerned, we are among the poorest countries in the world. So unless the economy grows, we will not be able to provide that level of, because it costs money. Yeah, what is the issue, Ashish? You are free to ask any issue, no problem.
Now we'll talk about the medical ethics and bioethics. Now this is a very, very important issue which is coming nowadays. Medical ethics deal with the study and moral values and the judgment in the field of medication and healthcare. And bioethics deals with the ethical implication of the biological research and the implication, especially in the field of medicine. Bioethics include study of what is right and wrong in the new discoveries and techniques in the biology, such as genetic engineering and the transplantation of the organs. It includes the issues like abortion, cloning, euthanasia, eugenics, and others. तो ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं इसके अंदर आते हैं, क्योंकि आजकल देखिए क्या हो रहा है कि जेनेटिक जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाई करना, जैसे जेनेटिकली हमने क्रॉप्स को मॉडिफाई किया, एनिमल्स को मॉडिफाई किया, वैसे ही ह्यूमन बींग्स को मॉडिफाई करने की बात चल रही है. हाउ मच ऑफ दैट इज should be done, what should not be done? Should we create human beings who will have IQ of 150 or 200? Should we create human beings who will live 200 years? So ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज्यादा पर्टिनेंट आज. देखो ऐसा है आशीष की आपने जो बात करी कि कंप्लीट बैन ऑन सिगरेट एंड लिकर. अब ये बात मेरे ख्याल से आशीष आप बिल्कुल सिगरेट और नहीं स्मोक करते होंगे और लिकर नहीं कंज्यूम करते होंगे, सो दैट इज व्हाई यू आर सेइंग. लेकिन जो लोग लिकर को कंज्यूम करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको अगर लिकर नहीं मिले तो उनको तो पार्टी में कोई मजा ही नहीं आता है. ठीक है. तो आप देखिए कि ये चीजें इतना आसान नहीं होती जितना आपको लगती हैं. ठीक है. और उसके साथ उसको बैन करना आसान है, लेकिन उसके बाद में रेवेन्यू लॉस भी बियर परहैप्स कर सकते हैं आप, बट उसके बाद में आप इलीगल जो लिकर और सिगरेट का कंजम्पशन होगा, बीड़ी का कंजम्पशन होगा, उसको कैसे स्टॉप करेंगे, ये सवाल है. यस. आशीष देखो आपकी बात आई 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 फुल्ली एग्री विद दैट, एंड मैं ये कहता हूँ कि भाई देखो ऐसा है कि ये चीज जो आशीष ऐसा है कि एक चीज हम लोग कहते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील, है ना, एक शब्द आप लोग थोड़ा सीख लें, इसको हम कहते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील. जब हमने पीएचडी की तो पीएचडी को क्या कहते हैं, पीएचडी को कहते हैं रिसर्च. रिसर्च. तो पीएचडी में एक चीज जो हमें सिखाई गई वो ये सिखाई गई कि हर चीज को जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहिए. whenever you want to do something, find out what others have done and what has been the consequence, let us learn from them. ठीक है. इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वेरी क्रिएटिव आइडिया एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया. तो ये जो आप बात कर रहे हैं, सिगरेट बैन की बात कर रहे हैं, लिकर बैन की बात कर रहे हैं, देखिए आपको मैं बताऊं अमेरिका जैसा कंट्री, वहां पे लिकर बैन किया गया था 1920. इंडिया के अंदर भी लिकर बैन आपको मालूम है बिहार में है, और उसके अलावा आपका जो लिकर बैन है वो गुजरात में है और भी कुछ स्टेट्स में है. ठीक है. मिजोरम में है. लेकिन आप जानते हैं कि लिकर कितना सक्सेसफुल है वो वहां पे. तो गवर्नमेंट हैज लॉस्ट रेवेन्यू, बट लिकर इज फ्रीली अवेलेबल. कम से कम 2-3 गुना प्राइस पे लिकर अवेलेबल है. सो बैन करना बड़ा आसान रहता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल रहता है. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहती है ना. हम लोग गुजरात में थे, मुझे याद है गुजरात के अंदर आई वॉज पोस्टेड फॉर 3 इयर्स, और कोई ऐसी पार्टी नहीं होती जिसमें लिकर नहीं होता. कोई ऐसी पार्टी नहीं होती जिसमें लिकर नहीं होता. ठीक है. और सब लोग रहते थे, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर सब लोग रहते थे, मिलते सब मिलता रहा. तो ये जो एक चीज होती, कहना होता है बैन कर दो, बैन करना बहुत आसान है, एक लॉ पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, बैन हो जाएगा. लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, रेवेन्यू तो सरकार लूज करेगी वो अलग बात है, बट इन्फोर्समेंट पे खर्चा होगा. और उसके बाद में इलिसिट लिखकर, इलिसिट सिगरेट में, आप सिगरेट बनाने के लिए क्या चाहिए, फिर आपको टबैको का मैन्युफैक्चरिंग बंद करना पड़ेगा, क्योंकि टबैको अगर बन गया तो सिगरेट बनाने के लिए अगर आपके पास में, मैं आपको बताऊं कि
एक छोटा सा कमरा 10 बाई 10 का हो तो उसमें आप लाखों सिगरेट पर डे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इतनी आसान होती है कि अगर आपके पास में एक रूम हो 10 बाई 10 का, आप लाखों सिगरेट पर डे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप टोबैको बैन करिए, टोबैको कल्टीवेट करना कितना आसान है। ये बड़े कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, और ये ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं की गई, पहले ट्राई की गई और इसके बाद में सफलता नहीं मिली। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बैन नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ ये कंट्रोवर्शियल इशू है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बैन नहीं करना चाहिए। मैं तो खुद ही इन सब चीजों को कंज्यूम नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं। पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दैट हेल्थ। ये बात है ना कि भाई जिस जो खुद लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जिस दिन डिमांड खत्म होगी उस दिन वैसे ही कोई कंज्यूम नहीं करेगा। अब ये कहाँ से आइडेंटिफाई करें कि कौन से लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उसको इरेस्पॉन्सिबल तरीके से उसको यूज नहीं करते, ये बड़ा मुश्किल काम है ना। बैन इज, यू आर वेरी राइट सुनील, बैन इज वेरी इजी, बट उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है। आपने केस स्टडी न्यूज़पेपर का लिखा था, कौन सा केस स्टडी था आपका? अरे वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, आप बता दो ना, दोबारा बता दो क्या है। पीपल विल इन्फेक्टेड बाय एक्टिव वायरस। देखिए क्या होता है, जहां साहब ऐसा है कि जो आपका, जो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ इस एथिक्स के पेपर में, और सारे पेपर्स में आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, सारे पेपर्स की एडवाइस। देखिए अगर कोई भी चीज मान लो आपने रिसर्च की है, सपोज करिए आपकी एक पर्सनल रिसर्च है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या चांसेस हैं कि वो रिसर्च के बारे में आपके एग्जामिनर को पता होगा। चांसेस कितने हैं उसके? ठीक है ना। तो आपके एग्जामिनर को वो रिसर्च, बहुत रेयर है कि वो एग्जामिनर को वो रिसर्च पता हो। और जब तक वो रिसर्च उसको नहीं पता है तब तक आपके रिसर्च को वो क्यों ट्रस्ट करेगा? यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? इसलिए ऐसा होता है कि हमें ये देखना चाहिए। देखो हमें लाइफ में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको समझो। आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, लेकिन बिजनेसमैन को समझ आनी चाहिए कि क्लाइंट क्या चाहता है। आपने आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट बना दिया और क्लाइंट को तो पसंद ही नहीं आया, आपका बिजनेस बैठ जाएगा। एक टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट क्या चाहता है। मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मेरे से ज्यादा ज्ञानी भी कोई नहीं है पूरी दुनिया में, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बट स्टूडेंट्स को कुछ समझ ही में नहीं आता है। तो अब मैं सक्सेसफुल हूँ या फेल्योर हूँ? आई थिंक आई एम फेल्योर। मैं एक राइटर हूँ और मेरे को ये नहीं पता कि भाई जो रीडर है उस पढ़ना क्या चाहता है। अब मैंने किताब लिख दी, बहुत आउटस्टैंडिंग किताब है, लेकिन किसी ने पढ़ा ही नहीं, किसी ने खरीदा ही नहीं, किसी को पसंद ही नहीं आई। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप लिखते हो, देखो तो अपने को हमेशा ये ध्यान रखो कि किसके लिए लिख रहे हो, और जो बातें आप लिख रहे हो क्या उस बात को वो बंदा अप्रिशिएट करेगा। अगर वो अप्रिशिएट कर सकता है तब आप लिखो। ये थोड़ा सा आपको एक इंट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा, है ना, इंट्यूशन थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। आपकी अगर सेल्फ रिसर्च है और उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं है तो शायद उसको पता ही नहीं हो, वो कहेगा यार ये कहाँ से लिख दिया उसने। लेकिन अगर वही न्यूज़पेपर में छपी है, वही मीडिया पे आई है, तो उसको पता होगा। तो वो चीजें अगर लिखेंगे तो वो अप्रिशिएट करेगा। हाँ हिंदू में आई थी, अब नहीं अगर वो, क्योंकि देखिए रिसर्च भी किसी रिसर्च पे बेस होता है ना, तो आपने अगर ऐसी चीज लिखी हुई है तो डेफिनेटली उसको आप उसमें डाल सकते हैं। बट ये आपको एक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यार कि मैं जो लिख रहा हूँ वो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो उसको अप्रिशिएट करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ आप सोर्सेज से पढ़िए, अगर किसी नहीं, हिंदू को छोड़ दो, किसी भी रिलायबल सोर्सेज से है। देखो एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई इस तरीके की रिसर्च कोट करो तो उसका सोर्स जरूर दो, है ना। अब आप सोर्स में ये मत देना कि हिंदू पेपर में लिखा हुआ था इस वजह से ये लिखा ना, बिल्कुल गलत है, कभी भी नहीं। ये यूएन की कौन सी एजेंसी थी, कौन सी रिसर्च लेबोरेटरी से आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइंडिंग थी, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की फाइंडिंग थी, यूएस हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइल फाइंडिंग थी, यूरोपियन यूनियन की फाइंडिंग थी। आपको जब इस तरीके की कोई आप बात करते हो तो उसका सोर्स देना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जब हिंदू में आपने पढ़ा हुआ है तो हिंदू के अंदर जरूर उसका सोर्स दिया होगा कि किस सोर्स से हिंदू ने कोट किया होगा, वो जरूर देना। तो रिसर्च के अंदर हमेशा देखिए ये चीज बहुत जरूरी रहती है कि आप सोर्स दें।
क्योंकि सोर्स से ही उसकी ऑथेंटिसिटी आती है। ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, अगर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज अ फंटास्टिक रिसर्च, यस यू मस्ट कोट दैट। एबॉर्शन पे हम परसों जो है हम एक स्पेसिफिक एबॉर्शन पे हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि क्या व्यू है। तो ये उसमें आपको ये जो आपने क्वेश्चन है उसका जवाब आपको मिल जाएगा, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन का जवाब हम देंगे उसमें। ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्लान्ड है, एबॉर्शन पे हम आपको इसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, प्लीज जस्ट वेट फॉर मंडे। नाउ विल कम फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स कहाँ से बनते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड्स टू एथिक्स ऑफ अ पीपल? So let us understand that. Now, determinants of ethics basically means the factor that determine the ethical conduct of a person are called the determinants of ethics. What are the different factors which contribute for the ethical behavior of the person? That basically is called the determinants of ethics. Ethical values of the persons depends upon multiple factors like person individual, the place in which he is born, he is brought up, law, organization, religion and philosophy, and time. मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं पर्सन। देखिए किसी भी उसमें पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड, यू नो, इवन द साइकोलॉजिस्ट और यू नो द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एवरीबडी, यू सी एवरी इंडिविजुअल हैज सम स्पेशल, यू नो, नेचर। आपके फैमिली में आपने देखा होगा दो रियल ब्रदर्स या दो रियल सिस्टर्स होती हैं, उनके नेचर में भी फर्क होता है और बचपन से ही फर्क होता है। पेरेंट्स को 1 साल के भी नहीं होते, 6 महीने के भी नहीं होते, तभी उनको पता रहता है कि यार ये दोनों बच्चों में फर्क है। तो कुछ हमारे अंदर एक नेचर होता है शुरू से। तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक एंड पोजेस डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। आप देखोगे बचपन से कई बच्चे होते हैं शांत रहते हैं, चिल्लाते नहीं है, कोई भी आता हंसते, वहीं पे बच्चे कुछ होते हैं हमेशा रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं। आप देखोगे बचपन से ही करेक्टर में कुछ फर्क आता है, तो ये एक इंडिविजुअल नेचर होता है। एथिकल वैल्यूज आर डेवलप्ड ड्यू टू नेचर एंड नर्चर। दो फैक्टर्स होते हैं, नेचर जो कि आपका इनबॉर्न होता है, और नर्चर जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े होते हैं। ये दोनों का फैक्टर का, और रफली लोग कहते हैं 50-50% रोल रहता है। पीपल एक्वायर देयर एथिकल वैल्यूज फ्रॉम देयर पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर एंड एक्सपीरियंस। तो ये एक बहुत होता है कि जिस तरीके का हमारा नेचर होता है उस तरीके के लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए कि जैसे एक ही फैमिली में मान लिया फादर है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मान लिया फादर ड्रंकर्ड है, एक फादर ड्रंकर्ड है, आते हैं मदर को मारते हैं, बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं। मान लिया एक ऐसी फैमिली की हम इमेजिनेशन करते हैं, अब वहां पे दो बच्चे हैं। अब एक बच्चा ऐसा होगा कि जो बड़ा होकर के फादर जैसा बनेगा, और दूसरा बच्चा होगा उसके, वो एक डिटरमिन कर लेगा कि मुझे फादर जैसा नहीं बनना है। तो सेम इवेंट हुई थी कि सेम अपब्रिंगिंग में दोनों को, बट एक बच्चा जो है उस फादर से ये सीखेगा कि मुझे क्या नहीं करना है, और दूसरा बच्चा ये सीखेगा कि मुझे क्या करना है। सो इस तरीके से जो पेरेंट्स का बिहेवियर होता है वो भी जो है आपके जो इन्वायरमेंट है, आपका जो नेचर है, आपके एथिकल वैल्यूज है, उसको चेंज करता है। नहीं, ये उदय, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ जो आपने कहा कि अच्छे फैमिली में रहेगा तो अच्छा होगा और चोर की फैमिली में रहेगा चोर होगा। इस बात को मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। ये देखिए ऐसा है कि अच्छे फैमिली से भी बहुत सारे गलत लोग निकलते हैं, और बहुत सारी गलत फैमिली से बहुत सारे अच्छे लोग निकलते हैं। तो ये बात से मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। आप देखिए गांधी जी इतने बड़े महान आदमी थे, उनके जो बड़ा बेटा था वो कितना उनसे अलग था। तो ये कहीं ना कहीं देखिए ये मैं मानता हूँ, ये मैं इस बात को मैं मानता हूँ कि अगर आपकी फैमिली अच्छी है, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, तो आपके चांसेस बेटर हैं अच्छा बन। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, अच्छे से अच्छे फैमिली के अंदर बहुत बुरे से बुरे लोग पैदा होते हैं। तो दैट आई डोंट एग्री विद दैट। हाँ वैल्यूज मैंने बताया 50% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, 50%। अगर अच्छी फैमिली मान लिया माँ बाप दोनों अच्छे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि अगर लड़के के अंदर कोई कमी भी रहती है तो वो भी धीरे धीरे करके अच्छा हो जाता है, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, अच्छे से अच्छे पेरेंट्स होते हैं, बुरे निकल जाते हैं, और बहुत सारे बुरे पेरेंट्स होते हैं जिनके अंदर कोई क्वालिटीज नहीं होती हैं। आप देखोगे उनके बच्चे एक से एक, जिसको कहते हैं कई बार हीरा बन के निकलते हैं। तो ये होता है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने चिमेंद्र कहा आपने
कि एक तो देखिए क्या है कि आपको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है कि आप अपने घर में हैं, ठीक है, लेकिन आप बाहर भी तो मिल रहे हैं। बाहर जब आप लोगों से मिलते हैं तो young persons will follow the values of their parents and follow the opposite values, मैंने आपको जैसा बताया। And peer pressure in schools and colleges is also responsible for development of many ethical and unethical values। अब जब से स्कूल में बच्चा जाता है तो स्कूल के अंदर उसके फ्रेंड्स कैसे बने, अच्छे फ्रेंड बन गए बच्चे की जिंदगी बन जाती है, और बुरे फ्रेंड्स बन गए तो बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि पेरेंट्स का कुछ हद तक रोल रहता है, लेकिन अब स्कूल में उसके कैसे फ्रेंड है, और वहां पे भी फिर नेचर का रोल हो जाता है, वो बच्चा अपने हिसाब से फ्रेंड सेलेक्ट करता है। हाँ, इनहेरेंट अपूर्वा बिल्कुल सही। इनहेरेंट जो नेचर होता है ना उसके बेसिस पे क्या होता है, जैसे कि आप स्कूल जाते हो उस हिसाब से आप अपने फ्रेंड सेलेक्ट करते हो। पेरेंट्स तो आपके फ्रेंड नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब आपके पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको वहां पे आपको खराब फ्रेंड्स मिल गए जो कि आपको बुरी आदतों में डाल देते हैं, देन यू विल ऑल्सो बी स्क्वायर्ड। सो रोल ऑफ पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर बंदे की अपब्रिंगिंग अलग अलग होती है, हर बंदे की फैमिली अलग होती है, हर बंदे के स्कूल्स अलग होते हैं, हर बंदे के टीचर्स अलग होते हैं, इसलिए वो यूनिक तरीके से डेवलप होता है और एक यूनिक वैल्यू को लेकर के चलता है। उसके बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है प्लेस। कल्चर, ट्रेडिशन एंड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी एंड कंट्री प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अवर एथिकल वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज वेरी ग्रेटली इन ईच कंट्री एंड ईच सोसाइटी। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, और इसको आप प्लीज जो है वो रीजनल लेवल पे मत लीजिएगा, मैं आपको, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें मैं आपको बताता हूँ। मेरी जैसे पहली पोस्टिंग मुजफ्फरपुर के अंदर हुई थी, बिहार के अंदर। अब वहां पे ये आलम था कि साहब रात में कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था। मैं आपको 93 की बात कर रहा हूँ, और वहां पे जितने घर होते थे वहां पे कोई विंडोज नहीं बनाता था, और वहां पे जो डोर्स हैं वहां पे लोग शटर लगाया करते थे। जो आपका शॉप्स होते हैं ना दुकानों के बाहर, जो लोहे की पूरी शटर्स होती हैं वो नॉर्मल डोर्स, वुडन डोर्स नहीं होते थे, वहां पे लोग शटर लगाया करते थे। बिकॉज क्राइम का वहां पे आलम ऐसा था कि आप जैसे ही अंधेरा होता था कोई भी सड़क पे नहीं निकलता था। ठीक है। उसके कुछ सालों के बाद में मेरी गुजरात में पोस्टिंग। अब गुजरात के अंदर आपको ताज्जुब होगा कि वहां पे हम लोग जिस कॉलोनी में रहते थे, जिस टावर में रहते थे, वहां पे पास पड़ोस में लोग जाते थे तो बाहर लॉक तक नहीं लगाते। वहां पे बाहर लॉक नहीं लगाते थे, सिक्योरिटी नहीं लगा दी, बाहर चले गए। कोई भी वहां पे जो कार होता था उसमें कोई आदमी गियर लॉक नहीं लगाता था, कोई अलग टाइप के सेफ्टी मेजर्स नहीं रहते थे। लड़कियां जो है रात में 12 बजे भी जो है वो अकेले घूम रही हैं, अकेले जा रही हैं, है ना, और रात में नाइट शो देख करके वापस आ रही हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये सोसाइटी में आप कहाँ से बड़े हुए हैं। अब आप बिहार में अगर पैदा हुए, यूपी में पैदा हुए, मैं तो यूपी का ही रहने वाला हूँ तो मैं यूपी की सिचुएशन भी जानता हूँ। दिल्ली की सिचुएशन छोड़िए, यूपी बिहार तो छोड़िए, मान लिया बैकवर्ड है, दिल्ली की बात करो। दिल्ली में आप सेफ महसूस नहीं करो। मेरी डॉटर थी चेन्नई के अंदर। चेन्नई में लोग बसेस पे ट्रेवल करते थे, वहां पे वो नॉर्मली अपनी फैक्ट्री से अक्सर वो वहां की गवर्नमेंट बसेस पे आती थी। रात में 12 बजे भी आती थी, 11 बजे भी आती थी, कभी मुझे डर नहीं लगता था कि वो रात में अकेले आ रही है, और वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रही है। और वहीं पे अगर दिल्ली में अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना पड़े, जबकि दिल्ली के अंदर आप देखिए कि यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है, डेवलपमेंट है, वो इंडिया में शायद सबसे ज्यादा होगा, बट यहाँ पे आप वो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आपको नहीं आती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सोसाइटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जहाँ पे बड़े होते हैं, या आई एम फ्रॉम यूपी, लखनऊ, और बर्थ प्लेस इज रायबरेली, बट आई वॉज ब्रॉट अप इन लखनऊ। तो अब लखनऊ है, लखनऊ तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है, अब ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो फीलिंग आप सोच नहीं सकते जो कि जैसे गुजरात में मैंने आपको बताया कि रात में लड़कियां हैं साहब बाहर जा रही हैं, स्कूटर से निकल गई, रात में नाइट शो दे के आ रही हैं, ज्वेलरी पहने हुए हैं। वो फीलिंग आपको नहीं आ सकती यहाँ पे, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी बिल्कुल अलग टाइप से ग्रो करती है। जो लोग उस एरिया के हैं उस बात को जानते हैं। तो प्लेस ऑल्सो प्लेस अ वेरी, अभी गरबा चल रहा है, 10-10 हजार लोग एक साथ गरबा करते हैं और अननोन लोगों के साथ गरबा करते हैं। कभी कोई मॉलेस्टेशन नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। इस तरीके का कोई फेस्टिवल नॉर्थ इंडिया में है ही नहीं, मैंने तो देखा नहीं आज कि जहाँ पे कॉमन फेस्टिवल में हजारों लोग एक साथ में इवन अन लोगों के साथ मिलकर के डांस करें, लड़कियां डांस करें, लड़के डांस करें, एंड दे आर फीलिंग वेरी सिक्योर एंड सेफ। सो नाउ दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी।
Corruption is quite common in India, but not so in other countries. Now, suppose you are in India, you know, if you are a government officer, it is taken to be a corruption. But अभी आप अमेरिका में होते, सिंगापुर में होते, जापान में होते, तो शायद आप करप्शन के बारे में सोचते नहीं. So these things are also, you know, depend upon the place. अब बहुत सारे आशीष, केवल कंजर्वेटिव की बात नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर्स. आप देखिए गुजरात में जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं, बिहार के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? आप पूरे बिहार में जितनी फैक्ट्रीज होंगी उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतनी फैक्ट्री केवल चेन्नई चेन्नई में है. पूरे बिहार में जितनी फैक्ट्रीज हैं, यू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बाय 10, एंड दैट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इज देयर इन चेन्नई सिटी अलोन, जो 40 लाख 50 लाख की पॉपुलेशन. इतना फर्क है. तो अच्छा, कानपुर के अलावा बहुत, हाँ, पड़ोस के ही है. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें जो हैं, ये इसका बहुत फर्क पड़ता है. लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो ये सोसाइटी. बट सवाल ये उठता है कि अगर आप उस सोसाइटी से बड़े होंगे तो वहां की वैल्यूज आप इनकलकेट करेंगे. कहने का मतलब ये है. अब लिव इन रिलेशनशिप है, अडल्ट्री है, एक्स्ट्रा मैरिटल प्री मैरिटल रिलेशनशिप है, दीज आर क्वाइट कॉमन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, इन नॉट इन इंडिया. और ये मत सोचिए कि इंडिया में हमारे यहाँ पे चरित्र नहीं है, बिल्कुल गलत है. आप वेस्टर्न कंट्रीज में हमसे ज्यादा चरित्रहीन लोग रहते हैं, जिसको हम डिफाइन करते थे. बात यह है कि वहां पे ठीक है, लोग शायद करप्शन नहीं करते होंगे, लॉ ब्रेक नहीं करते होंगे, बट इफ यू गो इनटू द लाइक लिव इन रिलेशनशिप, अडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्री मैरिटल अफेयर्स, तो ये सारी चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू इंडिया. सो कम्पेयर टू दैट वी आर हाईली मॉरल in our society. So place plays a very important role. Then comes the law. The government of the state makes law that prohibits certain actions and allows other actions. And law decides the concept of right and wrong for the citizen. तो लॉ जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. लॉ गाइड्स द सिटीजन टू फॉलो द राइट एक्शन. फॉर एग्जांपल, लॉज लाइक प्रोहिबिशन ऑफ सती प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टॉपिंग सती प्रथा. पहले सती प्रथा, जैसा कि आप जानते हैं, आशीष जी, ये बहुत जगह ऐसी बात नहीं है. अभी यहाँ पे नोएडा में भी सोसाइटी के बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, बैचलर्स नॉट अलाउड. ये मत कहो कि गुजरात के अंदर ही है, बट फिर भी खूब बैचलर रहते हैं यहाँ पे. तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो गुजरात में है, सब जगह पे है लोग, लेकिन बैचलर बदमाशी करते हैं ना बहुत ज्यादा. तो प्रोहिबिशन लाइक सती, सती जैसे है वो, उसमें गवर्नमेंट का बहुत रोल है. नो लॉज रिलेटिंग टू इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजन मैरिजेस, prohibition of dowry, then divorce provisions has transformed the, you know, the ethical values of the society. तो अगर सपोज करिए कि डिवोर्स जो है वो इलीगल होता है इंडिया, आपके रिलीजन में तो पहले इंडिपेंडेंट इलीगल था, 1954 के पहले वैसे ही वो प्रोविजन नहीं था, तो आज आपका जो एक रिलेशनशिप है सोसाइटी का अलग होता. अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट regarding 377 of the IPC unconstitutional to, which was boosting the LGBT right. Now the Supreme Court judgment which has come, now that is creating a different type of morality. That's going to have a long-term implication on morality. And if the government has, makes a law which is there, demanded now by many of the, LGBT activists, there should be, the property rights, there should be, spouse rights and all those things. So if that is, done in future by the government, then that is again going to change the morality of the society. The SC judgment on triple talaq and sabri mala is also likely to transform the values of the society in future. तो जिस तरीके से ट्रिपल लॉक को, ट्रिपल तलाक को इलीगल किया गया है, तो उसके बाद में भी सोसाइटी में इसका इम्प्लीकेशन होगा काफी सारा. तो इस तरीके से ये जो सबरी माला है, ट्रिपल, सो ऑल दोस थिंग्स, लॉ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द ethical values of the society. Then organization. Now every organization has a culture of its own. हर organization का अपना culture होता है. Now like the people who join a corporate, the people who join NGO, the people who join hospitality sector, and the people who join police department or tax department, every organization has a culture. And when you join a particular organization, your values will be changed, your ethical values will be changed accordingly. People mold their values to fit into the organization. And the ethical values of the employees of the government sector, पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट एंड पीएसयू वैल्यू. अब आप मान लिया आज की तारीख में पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हो, सपोज करिए, तो आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में जा करके आप ऑनेस्ट रह पाओगे, है ना? गवर्नमेंट को देखो, लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर लोग बहुत करप्ट होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर ऑनेस्टी इज अ चॉइस, करप्शन इज अ चॉइस. अगर आप ईमानदार रहना चाहते हो, नथिंग लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
उससे बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर भी आपको कॉर्पोरेट की चीजों के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप कॉर्पोरेट के जो बेनिफिट्स नहीं लाते हो, चाहे आप एथिकल अनएथिकल कैसे भी करके, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। गवर्नमेंट के अंदर क्या है, आप सिलेक्शन प्रोसेस देख लो, अभी तक तो सारा एथिकल है, आप एग्जाम देते हो, ऑनेस्टली सिलेक्ट हो जाते हो। कॉर्पोरेट में कोई रूल नहीं है। कॉर्पोरेट में आप अपने भाई को लगा लो, चाचा को लगा लो, दादा को लगा लो, उसको बॉस बना दो, उसको सीएमडी बना दो। पॉलिटिक्स में क्या रूल है? अभी कल ही देखो, आदित्य ठाकरे जो है, जो कि इसका शिवसेना में जो उद्धव ठाकरे का लड़का है, अभी कल प्रेस स्टेटमेंट उद्धव ठाकरे ने दिया कि नहीं, अभी उसको चीफ मिनिस्टर बनने का नहीं है, वो देश महाराष्ट्र की सेवा करना चाहता है। बट सपोज करो कि अगर मान लो कि हाइपोथेटिकली शिवसेना गेट मोर सीट्स देन बीजेपी, आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकली, मे बी आदित्य ठाकरे विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, है कि नहीं है? तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो फील्ड्स है वहां पे कोई रूल नहीं है, वहां पे जो जीता वो सिकंदर है ना। उसके मुकाबले में अगर गवर्नमेंट सर्विस में आप सोचो, तो आप देखो कोई भी आदमी अगर प्राइम मिनिस्टर भी है, तो वो किसी को आईएएस नहीं लगा सकता, किसी को आईएएस नहीं बना सकता। ठीक है, आईएएस तो छोड़ो, अगर आपकी रैंक कम आती है, एक रैंक भी कम आती है, अब आईपीएस मिल रहा है, आपको आईएएस नहीं बना सकता, फॉरगेट अबाउट दैट। तो ये तक भी पावर उसके पास में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी एथिकल तरीके से आप जाते हो। अब आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, जिस दिन आपने एंट्री कर ली, उसके बाद में आप ये समझो आपकी सारी सैलरी सिक्योर्ड है, पे सिक्योर्ड है, पर्स सिक्योर्ड है, प्रमोशन सिक्योर्ड है, और टिल योर रिटायरमेंट आपको गवर्नमेंट से कोई निकाल नहीं सकता, अनलेस आप कोई गलत काम करते हो। अगर आप सही काम करते हो, आपको पूरी जिंदगी की सिक्योरिटी। ये जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट में लाने के लिए लोग आना चाहते हैं, उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। कॉर्पोरेट में कुछ नहीं है। कॉर्पोरेट में देखो, जेट एयरवेज इतनी बड़ी कंपनी थी, बंद हो गई, थैंक यू। अगले दिन आप घर चले जाइए, है ना। आपको आपको क्या सिक्योरिटी है? आप बड़ी से बड़ी कंपनी में काम कर, एचडीआईएल का आप देखिए, इतनी बड़ी कंपनी है, आप उसका एमडी जेल में है। गवर्नमेंट में जब तक ये देश चल रहा है, जब तक ये देश चल रहा है, तब तक आपको कोई निकाल नहीं सकता। प्रधानमंत्री भी नहीं निकाल सकता। आप प्रधानमंत्री से पंगे ले सकते हो, वो आपको शंट कर सकता है, यहां से वहां डाल देगा, बट निकाल नहीं सकता है। ये प्रोटेक्शन आपको दिया हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हो, उससे भी डिपेंड करता है वहां का क्या कल्चर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सिक्योरिटी है, इसकी वजह से करप्शन बहुत बड़ा है हमारे यहाँ पे, गवर्नमेंट में भी है। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि पॉलिटिशियंस जो है वो वहां पे आपका कोई ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस नहीं आते, क्योंकि उन्होंने ऑनेस्ट लीगल फंडिंग का कोई मेथड ही नहीं निकाला हुआ है। इस वजह से चूंकि वो रूल करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, तो इस वजह से जो है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत खराब है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट में आपको अपनी चॉइस से आप करप्ट होते हो, अपनी चॉइस से होना चाहते हो, कोई आपको फोर्स नहीं करता। ये अगर कोई भी कहता है, बिल्कुल गलत कहता है। The ethical values of the police officer is different that of the employee of the hospital sector. So depending upon the organization which you join, that also plays a very decisive factor in deciding your moral values. Now, this is a very interesting experiment which was conducted in Stanford University, and this was conducted by Philip George Chimbarto, who was a psychologist and professor emeritus in Stanford University. And this experiment was conducted in 1971. And this is a very important, you should understand that. इसमें उन्होंने क्या किया कि 24 male students were selected on random basis on to participate in the psychological study of prison life. Experiment was conducted in a makeshift prison located in the basement of Stanford Psychology Department. ना स्टैनफोर्ड जैसा आपको मालूम होगा वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है, तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ये बड़े क्रूअल होते हैं। आप कभी भी किसी पुलिस ऑफिसर से मिलो, तो वो अगर आप रैंडम किसी थाने चले जाओ, तो उनका बिहेवियर बड़ा क्रूर रहता है, बड़ा बदतमीजी से बात करते हैं, है ना, खड़ूस रहते हैं। क्यों रहते हैं? वाई दे कांट बिकम अ गुड पब्लिक सर्वेंट? तो इस चीज को स्टडी करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो 24 बच्चों को सेलेक्ट किया गया, आधे लोगों को बनाया गया कैदी और आधे लोगों को बनाया गया जेल गार्ड। Half of them were randomly assigned the role of prisoner and half of them were made prisoner guard. अब उनको जो गार्ड थे उनको कहा गया कि भाई प्रिजनर्स को तुम्हें कंट्रोल करना है, और आप करके करिए इसको। तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। इनिशियली द प्रिजनर्स डिड नॉट टेक द गार्ड सीरियसली। Soon the guards began to impose their authority. फिर गॉड ने जो गार्ड्स उन्होंने अपनी अथॉरिटी इंपोज करने शुरू कर दी। When the prisoner refused to obey, the guards used power against them. The next day, the prisoner rebelled. Guard imposed the authority, forcefully giving them punishment also. Within a few days, the students who were merely acting as guards
began to behave like a real prison guard and became very sadistic. And the students who were playing the role of prisoner, they were, उनको सिर्फ रोल प्ले करना था, उनको केवल एक्टिंग करनी थी, है ना? And the students who were playing the role of the prisoner become extremely stressed and develop the symptom of acute depression. And ultimately, this experiment was originally scheduled for 2 weeks, but it has to be called off within 6 days due to the extreme effect on the participant. मतलब आप ये देखो कि 2 हफ्ते के लिए एक्सपेरिमेंट प्लान था और 6 दिन के अंदर एक्सपेरिमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ा, क्योंकि सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर, 6 दिन के अंदर ये हुआ कि जो गार्ड का रोल प्ले कर रहे थे वो बहुत ज्यादा सैडिस्टिक उन्होंने नेचर उनका हो गया, और जो प्रिजनर का था वो डिप्रेशन में चला गया। अब आप सोचो कि ये जब होता है, जब आप सिर्फ रोल प्ले कर रहे हो, और एक्चुअल पुलिस डिपार्टमेंट अगर आप ज्वाइन कर लो, एक्चुअल पुलिस डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कर लो, तो आपका बिहेवियर कैसे चलेगा, है ना? तो ये जो चीज होती है ना, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत हद तक डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब आईआईटी दिल्ली में था, हमने, हमारे साथ में एक फ्रेंड था हमारा, हम लोग बहुत सारे लोग थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते, उस जमाने में बहुत से लोग सेलेक्ट होते थे। तो एक फ्रेंड जो है वो हमारा, पता चला हमें, और वो, मैं ग्वालियर में जब पीएचडी कर रहा था तो मुरैना में पोस्टेड था, मुरैना में एसपी बन के पोस्ट हुआ। तो हम लोग मिलने के लिए गए, आई हैड वन फ्रेंड, और फिर वो भी एक आईपीएस था, और हम दोनों उससे मिलने के लिए गए उसके ऑफिस में। मैं ग्वालियर में था, बगल में ही है मुरैना। तो उसके जब कमरे में गए एसपी साहब के, हाँ मुरैना आए थे, बहुत पहले आए थे, हाँ। तो वो क्या हुआ कि उसने वहां पे, उसके कमरे में कोई भी विजिटिंग चेयर नहीं था। तो जब हम लोग अंदर गए तो उसने घंटी बजाई, जो पुलिस, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती है, वो सिपाही आया, कांस्टेबल, फिर उसने उसको कहा कि चेयर्स लेकर के आओ, फिर चेयर्स लेकर के आया, फिर चेयर्स पे हम लोग बैठे। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम विजिटर चेयर क्यों नहीं रखते हो? तो उसने कहा देखो, मेरे कमरे में कोई भी आदमी बैठ नहीं सकता, विजिटर चेयर केवल हम तुम्हारे जैसे फ्रेंड्स के लिए या वीआईपी के लिए मंगाते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी आता है वो या तो खड़ा रहता है, जमीन पे बैठ के बात करता है। तो इधर ही विल स्टैंड अप, या जमीन पे बैठ के बात करें। यहाँ पे विजिटर चेयर में किसी को ऑफर नहीं करता। जो एसएचओ जो पुलिस के बंदे भी आते हैं, वो भी जमीन पे बैठ के बात करते हैं, खड़े होकर बात करते हैं। तो हमें बड़ा खराब लगा, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हम लोग साथ में बैठ के तैयारी करते थे। ही वाज अ नाइस चैप, मतलब ही वाज अ स्टूडियस टाइप ऑफ पर्सन, बट टुडे ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर, है ना? तो अब हमें लगेगा कि यार बड़ा गलत काम है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि साहब भिंड मुरैना में ऐसा ही चलता है। भिंड मुरैना में अगर आप पुलिस ऑफिसर चाहते हैं अच्छा बनना, तो वहां पे आपको ऐसा ही बिहेव करेंगे तभी चले। आप लोगों ने पान सिंह तोमर देखी किसी ने? पान सिंह तोमर देखी किसी ने? पान सिंह तोमर। हम्म। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको करना चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ सही है गलत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था, दैट आई एम टेलिंग। और फिर टैक्स डिपार्टमेंट में बंदा जाएगा अलग होगा, आईआरटीएस में जाएगा, और फॉरेन सर्विस में चला गया वही बंदा, तो उसका बिहेवियर अलग होगा। ही विल बी अ डिप्लोमैट, सोफिस्टिकेटेड, वो लिटरेचर की बात करेगा, लैंग्वेज की बात करेगा, है ना? वहीं पे पुलिस में आ गया, आपका बिहेवियर अलग हो गया। हाँ तो जानवी आप, आई थिंक यू कैन कनेक्ट इट। एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुलिस ऑफिसर उसका नाम है काफी, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको अडॉप्ट करना पड़ता है ना? तो चलिए एक दूसरे पुलिस ऑफिसर के, हम बिहार की स्टोरी आपको बता दें। एक बिहार में एक पुलिस ऑफिसर ने हमें बताया, वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, नाम हम नहीं बताऊंगा मैं किसी को। तो उन्होंने कहा कि साहब जो है, एक बहुत ही बढ़िया पुलिस ऑफिसर थे जिनका बिहार में बहुत नाम था, वो जहां जाते थे क्राइम कम हो जाता था। तो उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था? जब किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होती थी तो सबसे पहले वो सारे थानेदारों को बुलाते थे। पहले जमाने में ना मसंद लगा करते थे, जिसमें आप बैठते थे ना, बिल्कुल वो जमींदार की तरह बैठते थे। तो एसपी साहब सबको बुलाते थे, बुला करके पूछते थे, बताओ इस जिले में सबसे बड़ा रंगदार कौन है? रंगदार, रंगदार बिहार के लोग जानते हैं। रंगदार का मतलब एक्सटॉर्शनिस्ट कह सकते हैं, गुंडा कह सकते हैं, क्रिमिनल कह सकते हैं। रंगदार, रंगदार वर्ड कहते हैं, भाई जिले का सबसे बड़ा रंगदार कौन है? तो लोग कहेंगे साहब हुजूर सच एंड सच पर्सन, XYZ। कहेंगे ठीक है, मीटिंग डिसमिस्ड।
फिर वो जो सबसे बड़ा रंगदार होगा उसको या तो वो इनकाउंटर कर देते थे या उसको उठा के जेल में डाल देते थे। फिर उसके बाद में अगली मीटिंग करते थे, फिर कहते थे बताओ जिले में सबसे बड़ा रंगदार कौन? तो कहते हुजूर आप। तो कहते अब ठीक है, अभी जो है ये डिस्ट्रिक्ट अच्छे तरीके से चलेगा। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अच्छे तरीके से चलता था। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जब तक हम लोग बाहर बैठे हुए ना, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, आपका नेचर अलग रहेगा, लेकिन पुलिस अगर ज्वाइन करेंगे तो या तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ढल जाएंगे या फिर आप अपने को आइसोलेट महसूस करेंगे। फिल्मी नहीं, ये रियल स्टोरी है रविंदर, ये रियल स्टोरी, क्योंकि मैंने रियल ऑफिसर से ये बात करी, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ये फिल्मी स्टोरी नहीं है, सही स्टोरी है। फिल्में भी कहीं ना कहीं से तो वहां से इंस्पायर होती है ना, ऐसा नहीं फिल्में हवा से तो नहीं आती। उसके बाद में रिलीजन एंड फिलोसफी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द मॉरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी पीपल। Most people in the world are religious and believe in God. Even now, 90% people in the world have believe in God, consider themselves religious. And all religions prescribe do's and don'ts to their followers. और उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम वाइल इट इज परमिटेड इन क्रिश्चियनिटी। अब अल्कोहल जो है वो इस्लाम में पूरी तरीके से हराम है, जिसको प्रोहिबिटेड। और इसलिए वर्ल्ड वाइड अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो मोर देन 95% ऑफ द मुस्लिम्स डोंट टेक अल्कोहल, मोर देन 95%। और क्रिश्चियनिटी में जो अल्कोहल है इट इज अलाउड। इनफैक्ट जीसस क्राइस्ट ने जो सबसे पहला मिरेकल किया, अगर आप बाइबल जो पढ़ते हैं, तो मैरिज पार्टी में वाटर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया और सब लोगों ने अल्कोहल उसके बाद दिया। तो क्रिश्चियनिटी में अल्कोहल इज पार्ट ऑफ द रिचुअल, पार्ट ऑफ द रिचुअल, इट इज पार्ट ऑफ द रिचुअल। तो आप देखोगे कि क्रिश्चियंस ऑलमोस्ट इनवेरिएबली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और मुस्लिम्स ऑलमोस्ट नहीं करते। अगेन कमिंग फ्रॉम रिलीजन। नाउ हिंदूज डिवाइड द पीपल बेस्ड ऑन द कास्ट इन अ रिजिड हायरार्की। जो कास्ट सिस्टम हमारा है वो आप कह सकते हैं कितना अनएथिकल है कि साहब जो कुछ कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट को ट्रीट नहीं करते, और वो लोअर कास्ट वाले अपने ही से लोअर कास्ट वालों को भी ट्रीट नहीं करते। ये मत सोचो आप। जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जो सबसे हम कहते हैं कई बार लोग लोएस्ट हैं, उनके अंदर न मालूम कितनी कास्ट है। उसी तरीके से आप ब्राह्मणों में चले जाइए, जिसको हम कहते हैं सबसे हाई कास्ट है, अरे ब्राह्मणों के अंदर कितनी कास्ट है। और ब्राह्मणों में भी सब ब्राह्मण बराबर नहीं है। कोई कहेगा था हम इतने बड़े ब्राह्मण है, दूसरा कहेगा छोटे ब्राह्मण है ना। तो ये कास्ट सिस्टम कहाँ से आता है? ये कास्ट सिस्टम भी आपका आता है आपके रिलीजन से आता है। और इसीलिए जो है देखिए, अब यहाँ पे मैं आप लोगों से थोड़ा सा है ना, आप लोग मुझे एग्री मत करिएगा, लेकिन सुन लीजिए, एग्री करने की जरूरत नहीं है। आप लोग एग्री मत करिएगा, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है। और सेंसिटिव इशू इसलिए है कि अगर हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करना है इस देश, तो कहीं ना कहीं लोगों को सेकुलरिज्म की तरफ लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि चूंकि ये कास्ट सिस्टम रिलीजन से आता है, तो रिलीजन के दायरे में कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होता है। जब हम लोगों के अंदर साइंटिफिक थॉट्स, सेकुलर वैल्यूज को कल्टीवेट करेंगे, तभी जो है ये जो कास्ट का जो सिस्टम है खत्म होगा, अदरवाइज खत्म नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूं गांव के अंदर हमारे जो परिवार के लोग हैं कितना हार्ड कोडेड हैं। हम चाहे पसंद करें ना करें, लेकिन जो भी कास्ट कम हो रही है उसका काफी कुछ क्रेडिट जाता है जो हम वेस्टर्न स्टडी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं साइंस कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं। ये क्योंकि यहाँ पे कास्ट नहीं है। और जब हम इनकी चीजों को जानते हैं, इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो कास्ट का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। अदरवाइज ये इतना इनग्रेन्ड है। अभी आप किसी मंदिर में आप किसी शेड्यूल कास्ट को पुजारी बना दीजिए, कितने लोग जाएंगे वहां? कितने लोग अपनी शादी करवाना चाहेंगे? कास्ट सिस्टम, इसको तभी ये जाएगा देखिए, जब तक कि हम सेकुलर वैल्यूज को, साइंटिफिक थॉट्स को जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे लोगों के अंदर, तब तक ये चीज जाने वाली। ये हमारी वीकनेस, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, मैं समझता हूँ ये हमारे हिंदुइज्म के लिए, मैं तो उसको कलंक मान, ये कलंक।
और जब तक हम इसको इस कलंक से नहीं लेके बाहर जाएंगे तब तक हमारा रिलीजन नहीं सुधरेगा। हाँ, देखिए क्लास तब भी एक तरीके से बेटर होता है, कम से कम आदमी चेंज तो कर सकता है ना। आप कास्ट में चेंज ही नहीं कर सकते। आप नोबेल लॉरेट हो जाइए, आपकी कास्ट चेंज नहीं होगी, लोगों का नजरिया नहीं बदले, कितना अनफॉर्चुनेट है। हाँ, पॉलिटिशियंस ये सोचते हैं कभी खत्म ना हो, क्योंकि उनका धंधा इसी पे चल रहा है, बट सफर तो हम लोग करते हैं ना। नो मोबिलिटी इन कास्ट। अच्छा, डिवोर्स इज नॉट अलाउड इन हिंदुइज्म बट परमिटेड इन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। अब ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर इंडिया में डिवोर्सेस के रेट कम है, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि अभी भी लोग डिवोर्स को पाप समझते हैं, गलत समझते हैं, तो इसलिए डिवोर्स नहीं देना चाहते। इस्लाम ने जैसे 4 मैरिजेस आर परमिटेड इन बाय मेल्स एंड ट्रिपल तलाक इज परमिटेड व्हिच इज नॉट देयर इन हिंदू। तो उस चक्कर में जैसे इस्लाम है, उसको भी ये कमी उसके अंदर है कि फीमेल और मेल्स को इक्वल राइट ना देना वहां पे। Now they should also, so these are the something like the status of the woman. Now those things are also determined by the, by the teacher. सरने आशीष ऐसा सरनेम का बिहार में बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, है ना। और वहां पे बहुत लोग सरनेम नहीं लगाते। और आपको पता होगा तमिलनाडु में तो वैसे ही सरनेम नहीं लगता, वहां पे फादर का नाम और गांव का नाम लगता है। नॉर्थ जो साउथ इंडिया के अंदर जो है, ज्यादातर जगह पे तो सरनेम लगता ही नहीं, वहां सरनेम होता ही नहीं है। लेकिन कास्टिज्म बड़ा जबरदस्त है वहां। तो सरनेम देखिए, ये मानसिकता की जो बात है ना, मानसिकता थिंकिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरनेम अब जॉर्ज बुश है, उनका भी तो एक सरनेम है ना, या बिल क्लिंटन, उनका भी सरनेम है, वहां तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो एक कारण है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ कि सर, है ना। अब ये प्राउड प्राउड नहीं है, वही तो कह रहा हूँ, ये हकीकत है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, देखिए अच्छी चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये है नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अच्छी चीज नहीं है मेरे विचार से। आप हो सकता है आप उसको ना माने, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है, मैं इसलिए आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप उसको माने। पर मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर हमें अपने देश को आगे लेके जाना है तो हमें कास्ट से मुक्ति पानी चाहिए। जब तक हमने अपने देश को हजारों कास्ट में और सब कास्ट में डिवाइड किया हुआ है, तब तक हम देश में यूनिटी नहीं ला सकते, हम अपने को अच्छा कंट्री नहीं बना सकते। हाँ, कम हो रहा है, कम हो रहा है आशीष, धीरे धीरे कम हो रहा है, बट और कम होना चाहिए, बहुत बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। So religion is one of the very important determinants of the ethical values, and faith on philosophies often determine the ethics of non-religious people. तो एक तो देखिए, रिलीजन के जो रिलीजियस लोग होते हैं उनके लिए तो आपका एथिक्स रिलीजन से आता है। जो नॉन रिलीजियस लोग हैं, एथिस्ट लोग हैं, वो अक्सर अपने जो वैल्यूज हैं वो अपनी फिलोसफी से कवर करते हैं, जो फिलोसफीज हमने डिस्कस की और जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। देन फाइनली द एथिकल वैल्यूज कीप चेंजिंग विद टाइम ऑल्सो। टाइम के साथ में, समय के हिसाब से एथिकल वैल्यूज चेंज होते हैं। जस्ट अनदर लास्ट स्लाइड। Ethical values keep changing with time. What was ethical in the ancient and medieval time is not considered to be ethical in the modern time. It was ethical to conduct war in the ancient and medieval time for whatever reason, but it is considered immoral in the modern time. It was immoral to be gay in the ancient time, but it is considered to be permissible in the modern time. It was unethical for a man or woman to marry against the wishes of their parents, but it is ethical now. Parents arrange marriage for their children earlier, even against their will, but such practices are unethical now. तो इस तरीके से समय के हिसाब से भी चीजें बदल जाती हैं। जो वैल्यूज अब से 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल पहले थी, आज वो वैल्यूज नहीं है। तो आज औरतें जो है, जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, वो सती सावित्री नहीं बनना चाहती। तो सभी सती सावित्री ठीक है, लेकिन आज की वैल्यूज हमारे बदल गए हैं। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है उसके हिसाब से वैल्यूज बदलते रहते हैं, और वो सही भी है, उसमें कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, समय हो गया, आप लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो आज हम खत्म करते हैं इसको। पीडीएफ अपलोड कर दिया है मैंने, पीडीएफ अपलोड कर दिया, यू कैन डाउनलोड दैट। So thank you, and see you on Monday. We'll meet up and we'll continue with this session, and also we'll discuss some case studies. Thank you so much, and good day, good weekend. See you on Monday. Thank you. Bye. Thank you.